आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। ऐसे महामुनि राज जो भारत में नाते, शुद्धात्मा की बात कहो कौन सुनाते। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रच करके कौन देता आत्मख्याति समय सार, ऐसे अनेक ग्रंथ भेद ज्ञान के भंडार। रत्न त्रय गुणों से भरा हृदय तुम्हारा, उनके बिना हृदय में शांति कौन दिलाते। ऐसे महामुनि राज जो भारत में नाते, शुद्धात्मा की बात कहो कौन सुनाते। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जलती कषाय अग्नि सहज भाव जलाती, कर्मों के महाबंध को आत्म से कराती। तुम्हारी छवि देख निज की महिमा ही होती, शांति का सहज प्याला कहो कौन पिलाते। ऐसे महामुनि राज जो भारत में नाते, शुद्धात्मा की बात कहो कौन सुनाते। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सम्यक्त बिना मोहन भव वन में घुमाया, सम्यक्त बिना आत्मा को उसने रुलाया। सम्यक्त आत्मा Should के we start? निधि कौन बताते, अध्यात्म सुधा सार कहो कौन पिलाते। ऐसे महामुनि Should we start? जय जिनेंद्र। कोमल जी रेडी है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। Jai Jinendra. I would like to welcome everybody for today's program, which is to celebrate Kund Kund Acharya Padvi Din. It was on Wednesday, 6th of January, Maksad Vad Atham. But due to suit everyone's
availability to come for the show, we decided to keep it on Sunday. I would like to introduce our speakers for this evening, Shri Prakash Bhai Shah of Kolkata. Next, Dr. Sanjeev Godha of Jaipur and Dr. Manish Jain of Meerut. We are indeed very, very grateful that you have given your precious time to us to join this evening. My name is Komal Shah and I am from Nairobi, Kenya. I am part of Veer Kund Kund Kahan Jain Youth Association. And we have been holding activities both online and live here in Nairobi. To begin with, we will begin with Namokar Mantra by Rajashri Shah and by Ahil Shah, her son, who is 9 years old. Vineet, please start. Thank you, Rajashri and Ahil. I would like to give you a brief introduction about the greatest saint of this Pancham Ara, Sri Kund Kund Acharya Dev, who has done the works of nearly, we can say, a Tirthankar Bhagwan of this fifth Ara. Kund Kund Acharya at birth was named Padma and later on was called Kund Kund because he was born in Kond Kund city. Later on, at the age of 44, he became an Acharya. Please take note, he became a Muni only at the age of 11 years old. Later on, he went to see Simandar Bhagwan and stayed there for 8 years, where his name became Elachar simply because his body was very small compared to all the other Muniraj. Once he came back to Bharatkshetra, the first Shastra that he wrote was Pravachansar. And later on, he wrote Niyamsar, Rayansar, Samaisar, and these are just to name a few. It is very important to note, although we are celebrating Kund Kund Acharya Padvi Din, he left his Padvi eventually to do Atma Sadhana. And this is what we have to learn from him, not to gain position or power, but instead to do the good we can, and depending on the Odaik Bhav we have, but later on, obviously, to also leave those vikalp, those thoughts, and to emerge in one's soul for infinite time. Without further ado, I would like to show you a short clip by our young children here in Nairobi who celebrated Kund Kund Acharya Padvidin in a very unique way. Vineet, please play the clip. Jai Jinendra. On Marksad Vad Atam, we celebrate Kund Kund Acharya Padvidin. To celebrate Please increase the volume. an art workshop for children. Come on, let's have a look. Om Namo Ayariyanam. Om Namo Siddhanam. Om Namo Ayariyanam. Om Namo Uvajayanam. Namo Lohe Sab Sahunam. Eso
We cannot hear the sound. ಎನಿ ಕುಂದ ಕುಂದ ಗೂತೆ ಮಾಡರೆ ಜಿನ ಜಿನಿ ವಾಣಿ ಬಲೀರೆ ಶ್ರೀಮಂದರ ಮುಕ್ತಿ ಫುಲ್ಡಾ ಕರೆ ಎನಿ ಕುಂದ ಕುಂದ ಗೂತೆ ಮಾಡರೆ ಜಿನ ಜಿನಿ ವಾಣಿ ಬಲೀರೆ ವಾಣಿ ಬಲಿ ಮನೆ ಲಾಗೆ वाणी बली मन लागे रड़ी जेमा सार समय शिर ताजरे जिन जिनी वाणी बली रे वंदर मुक्ति फुलड़ा खरे तेनी कुंद कुंद गूते माडरे जिन जिनी वाणी बली रे हे गूत्या पाहुडने गूत्यु पंचास्ति गूत्या पाहुडने गूत्यु पंचास्ति गूत्यु प्रवचन सारे जिन जिनी वाणी बलीरे गूत्यो नियम सारे गूत्यो रयण सारे गूत्यो समयनो सारे जिन जिनी वाणी बलीरे श्रीमंदर मुक्ति फुलड़ा खरे एनी कुंद कुंद गूंते माडरे जिन जिनी वाणी बलीरे हे स्याद्वाद केरी सुवासे भरेलो स्याद्वाद केरी सुवासे भरेलो जिन जिनो ओंकार नादरे जिन जिनी वाणी बलीरे वंदु जिनेश्वर वंदु ओ कुंद कुंद वंदु रे ओंकार नादरे जिन जिनी वाणी बली सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु. We are celebrating Kund Kund Acharya. Kund Kund Acharya, in his past life, he was a shepherd boy. Kund Acharya was there 2000 years ago. Kund Kund Acharya at birth was called Padma. Kund Kund Acharya was named Kund Kund because he was born in Kund Kund city. At the age of 11, Kund Kund took Diksha. At the age of 37, Kund Kund became an Acharya. When Kund Kund Acharya went to meet Simandar Swami, he wrote books called Samay Sar, Pravachan Sar and Niyam Sar. Samay means soul. Samay Sar is the book of the soul. श्रीमंदर मुक्ति फुलड़ा खरे एनी कुंद कुंद गूथे माडरे जिन जिनी वाणी बलीरे हे हरे हजोने मारा भावे हजो हरे हजोने मारा भावे हजो मारा ध्याने हजो जिन राज रे जिन जिनी वाणी बलीरे जिनेश्वर देवनी वाणी ना वायरा वाजो मने दिन रात रे जिन जिनी वाणी बलीरे श्रीमंदर मुक्ति फुलड़ा खरे एनी कुंद कुंद गूते माडरे जिन जिनी वाणी बलीरे जिन जिनी वाणी बलीरे जिन जिनी वाणी बलीरे
Thank you, Vineet. Now I request our co-host, Mr. Ankur Jain from Bhopal, Madhya Pradesh, to continue with the show. बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी। और जिस तरह का आयोजन केन्या नैरोबी में रहकर लगातार आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव श्री कहान गुरु को समझने के लिए लगातार आपके द्वारा और वीर कुंद कुंद कहान जैन युवा फेडरेशन के माध्यम से किए जा रहे हैं, वो सराहनीय है। और उसकी एक झलक हमने बहुत ही सुंदर ढंग से अभी ये जो छोटी सी शॉर्ट फिल्म थी इसके माध्यम से देखी कि किस तरह से छोटे छोटे से बच्चों में आपने आचार्य कुंद कुंद का जीवन परिचय हृदयंगत कराया है। और निश्चित तौर पर भविष्य में जब ये बच्चे बड़े होंगे तो अभी के वर्तमान के जो संस्कार हैं ये निश्चित तौर पर इनके साथ रहेंगे। खैर, शुरू करते हैं। आज हमारे साथ 3 विद्वान हैं जिनके माध्यम से आचार्य कुंद कुंद को और विशेष समझने का हम प्रयास करेंगे। और आचार्य कुंद कुंद देव का जो पदवी ग्रहण समारोह जो कि अभी 4 दिन पहले व्यतीत हुआ, लेकिन हम उसे हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से आज संडे को आयोजित कर रहे हैं। और विभिन्न देशों से सभी तरह के श्रोता वर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर अगले 1-1.5 घंटे में आचार्य कुंद कुंद के जीवन को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को और उनके माध्यम से जो शुद्ध तत्व ज्ञान का आज भी जो उसकी जीवंतता बनी हुई है, इस बात को समझने का हमको यहाँ पर सुअवसर प्राप्त होगा। जो 3 विद्वान हमारे साथ हैं, यद्यपि कोमल जी ने उनके विषय में संक्षेप में शुरुआत में ही जानकारी दी थी, हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़े हैं श्री प्रकाश भाई शाह कोलकाता से। मुझे लगता नहीं है कि कोई इनसे अपरिचित होगा, मुमुक्षु समाज के सभी लोग प्रायः इनसे परिचित ही हैं। और गुरुदेव श्री को और गुरुदेव श्री के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद को उनके मर्म को खोलने में और शुद्ध तत्व ज्ञान की अनुभूति, जिससे आत्मानुभूति दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा कैसे है, आत्मानुभूति में जो कार्यकारी हो, ऐसे विषय के चिंतन और विषय के प्रतिपादन के लिए ये विशेष रूप से जाने जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके माध्यम से प्रथम वक्ता के रूप में ही हमें आपको सुनने का यहाँ अवसर प्राप्त होगा। हमारे साथ दूसरे विद्वान हैं, ये भी बहुत चिर परिचित बड़ा नाम, और खास तौर से अब पिछले जो 10-15 महीने का समय बीता है, इसमें तो अनेकों लोग इनके माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। डॉक्टर संजीव जी गोधा, वे भी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और उनके माध्यम से भी हमको आचार्य कुंद कुंद के विषय में यहाँ जानने समझने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही तीसरे जो विद्वान हैं, ये भी मुझे लगता नहीं है कि मुमुक्षु समाज में कोई अभी इनसे अपरिचित हो। और पिछले दिनों जो श्रुतावतार नाम की जो श्रृंखला शुरू की थी, उसके लिए तो खास तौर से ये एक तरह से लेबल मनीष जी के साथ ही चिपक गया है कि इतिहास को, जैन संस्कृति को, जैन आचार्यों को और हमारी पूरी समृद्ध आगम परंपरा के ऐतिहासिक विवेचन के लिए और उसके बहुत ही सुंदर प्रतिपादन के लिए, तथ्यपरक जानकारी के लिए ये विशेष रूप से जाने जाते हैं। ऐसे डॉक्टर मनीष जी भी हमारे साथ हैं। तो तीनों विद्वान अपनी अपनी श्रेणी के अपने अपने स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जाना पहचाना चिर परिचित नाम है। और सिर्फ चिर परिचित होना ही काफी नहीं है, लोकप्रिय होना ही काफी नहीं है, वाकई में तत्व ज्ञान को स्वयं के हृदयंगत करने की भावना भी इन हमारे जो विद्वत गण हैं उनके हृदय में निरंतर बसती है। और यही प्रेरणा सभी लोगों को वे देते भी हैं। तो और ज्यादा अधिक विलंब ना करते हुए सीधे हम हमारे प्रथम वक्ता को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। और उनका विषय है, देखिए, जो आप विषय मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, आप उसको सुनकर आपको लगेगा कि शुरुआत में तो कुछ सामान्य चर्चा होना चाहिए था, है ना, कुंद कुंदाचार्य के विषय में। लेकिन हम जैसे कि आचार्य कुंद कुंद ने समय सार में पहली 6 गाथाओं में ही आत्मानुभूति कैसे हो, या फिर थोड़ा सा उसे विस्तार करें तो पहली 12 गाथाओं में ही समय सार को पिरो दिया और बाद में उसका ही आगे विवेचन किया है। तो क्योंकि लगता है ना कि कई बार कोई जरूरी नहीं है कि समय सार का लोग कोई पूरा अध्ययन ही करे, इसलिए पहली 12 गाथाओं में, शुरुआत की 6 गाथाओं में ही पाठकों को, श्रोताओं को वो माल प्राप्त हो जाए जिसके माध्यम से वे अपने प्रयोजनभूत कार्य की सिद्धि कर सकें। ऐसे ही हमने भी हमारी इस संगोष्ठी का पहला विषय ऐसा ही रखा है कि वे सीधे इस पहले विषय के माध्यम से ही आचार्य कुंद कुंद के महात्म्य को समझ सकें। और वह आचार्य कुंद कुंद के इस महात्म्य को समझना है तो हमें समय सार की पहली 6 गाथाओं के माध्यम से जो उन्होंने हमें दृष्टि दी है उसे समझना बहुत जरूरी है।
ऐसा ही विषय हमारे प्रथम वक्ता आदरणीय श्री प्रकाश भाई शाह के लिए विषय है आत्मानुभूति को सिर्फ 6 गाथाओं में सार रूप में कुंद कुंदाचार्य ने समय सार में समझा दिया। इस कथन का खुलासा करिए। प्रकाश भाई शाह को मैं आमंत्रित करता हूं और वे इस विषय पर चर्चा करेंगे। आत्मानुभूति को सरलता से भव्य जनों को 6 गाथाओं में आखिर कैसे आचार्य कुंद कुंद ने समझा दिया। प्रकाश भाई शाह। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु काननो। महावीर परमात्मा के शासन में कलिकाल सर्वज्ञ यानी कि सर्वज्ञ भगवान के विरह को भुलाने वाले पूज्य भगवत स्वरूप कुंद कुंद आचार्य भगवान का उपकार भरत क्षेत्र के अंदर में सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि इस युग के अंदर में दिगंबरत्व की जाहौज लाली यदि किसी से परिचित होती है तो उसका श्रेय पूज्य कुंद कुंद आचार्य भगवान को है। क्योंकि महावीर भगवान को तो सभी संप्रदाय मानते हैं, लेकिन जहाँ कुंद कुंद आचार्य भगवान का नाम ही पड़ता है तो परिचय होता है दिगंबरत्व का। ऐसे परम उपकारी पूज्य कुंद कुंद आचार्य भगवान के चरणों में उनके आचार्य पदवी दिन के निमित्त से जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें अपन सब अत्यंत विनय पूर्वक, भक्ति पूर्वक, सर्वार्पणता पूर्वक कोटि कोटि वंदन करते हुए, नमन करते हुए, उनकी गुण गाथा गाते हुए उन्होंने अपने को जीवन के अंदर में जो उपदेश दिया है, जिस मार्ग पे चलने की विधि बताई है, वो अत्यंत सर्वोत्कृष्ट सरल है। सबसे पहले तो अपन कुंद कुंद आचार्य भगवान के जीवन को देखें तो 11 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा लेकर भावलिंगी संत बनकर स्वरूप के अंदर में रमणता करते हुए, अंतर्मुहूर्त के अंदर में सैकड़ों बार स्वभाव में झूलते हुए और वहां से निकलते हुए प्रमत अप्रमत दशा के अंदर में झूलते हुए स्वरूप की चरम सीमा को अनुभवते हुए बहुत अल्प आयु के अंदर में आचार्य पदवी को प्राप्त करके महाविदेह क्षेत्र जाकर 8 दिन रहकर सिमंदर परमात्मा की ओम ध्वनि सुनकर सूत केवलियों का परिचय करके वापस लौटकर उन्होंने जो परमागमों की रचना की, 5 परमागमों की, ये भरत क्षेत्र के अंदर में द्वितीय श्रुत स्कंद के नाम से जाना जाता है। और उसी के अंदर में समयसार परमागम यानी जिनका परिचय पूज्य गुरुदेव श्री ने 19 बार जाहिर में प्रवचन करके और अंतरंग के अंदर में 100 बार से अधिक बार उनका स्वाध्याय करके जो महिमा गाई है, वो सही में समयसार एक महापरमागम है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिस ग्रंथादि राज के अंदर में प्रतिभूत कैसे हो, इसका विधि विधान, इसकी विधि सरलता पूर्वक बताई है। और उसका यदि अपन प्रथम 6 गाथाओं का विहंगावलोकन करें तो ये बात अत्यंत स्पष्ट होती है कि प्रथम गाथा के अंदर में कुंद कुंद आचार्य भगवान ने सर्व सिद्धों को नमस्कार करते हुए, वंदन करते हुए भरत क्षेत्र के सभी भव्य श्रोताओं के हृदय में सिद्ध भगवंतों की स्थापना की है। यानी अपना आत्मा बिंब है तो सिद्ध भगवान प्रतिबिंब है, प्रति छंद के स्थान पे है। इस तरह से जहाँ सिद्धों की स्थापना मैंने अपनी एक पर्याय, गुरुदेव श्री उसका स्पष्टीकरण करते हुए ये कहते हैं कि एक समय की पर्याय के अंदर में अनंत सिद्धों को समाने की ताकत है। और इसका जिसने इकरार किया, इसका जिसने विश्वास किया, वो अल्प काल के अंदर में सिद्ध होने वाले हैं, उसी के परिणामों के अंदर में सिद्धों की स्थापना हो सकती है। ऐसा अद्भुत अवसर, ऐसी अद्भुत परमागम, ऐसा अद्भुत जिनागम सिमंदर परमात्मा की वाणी कुंद कुंद आचार्य भगवान के माध्यम से गुरुदेव के परम पुण्य प्रभाव से जगत के भव्य जीवों को प्राप्त हुई है। इस 6 गाथाओं के अंदर में सबसे पहले बात तो यह कही गई है कि आत्मा है वो स्वभाव से शुद्ध है। उन्हें समयसार, जिनवाणी का नाम समयसार है। और दूसरी तरह से देखा जाए तो समय माने पदार्थ और पदार्थ में सार। पदार्थ के अंदर में सार क्या है तो कि जीव पदार्थ सार है। दूसरी तरह से देखा जाए तो जीव माने समय पदार्थ, उसमें सार शुद्धात्मा।
मने समय सार मने शुद्धात्मा, ये सार है सारी जिनवाणी का। तो जहाँ शुद्धात्मा के ऊपर लक्ष्य जाता है तो आत्मा की अनुभूति हो जाती है। जगत के सभी कार्य करने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न, बहुत कुछ पुरुषार्थ की चर्चाएं होती है, लेकिन जहाँ शुद्धात्मा की बात चलती है, भगवान आत्मा की बात चलती है, तो आचार्य भगवान कहते हो तो प्रकट है, विद्यमान है, हाजरा हाजुर है, उसकी सिर्फ दृष्टि होनी चाहिए। मैंने दृष्टि का विषय इतना स्पष्ट किया आचार्य भगवान ने कि जिसकी गुण गाथा क्या गाए। दूसरी गाथा के अंदर में स्वसमय और पर समय का वर्णन किया कि जो जीव ज्ञान दर्शन चारित्र के अंदर में स्थित है वो स्वसमय है, और राग के अंदर में स्थित है यानी कर्म पुद्गल के प्रदेश में स्थित है वो पर समय है। मैंने बहुत सीधी सी परिभाषा, जिनकी दृष्टि स्वभाव के ऊपर गई, शुद्धात्मा के ऊपर गई, वो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हुआ, और जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हुआ वो स्वसमय है, और जो राग द्वेष के अंदर में स्थित होता है वो पर समय है। तो वस्तु की व्यवस्था को यदि देखा जाए तो अत्यंत सुंदर, अत्यंत सरल, अत्यंत सुगम व्यवस्था है। इस व्यवस्था को समझने के लिए अपन कुनकुन आचार्य भगवान की महिमा करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात बताई कि शुद्धात्मा की दृष्टि से ही आत्मा की अनुभूति होती है। वस्तु प्रकट है, विद्यमान है, हाजरा हजूर है, स्पष्ट है, लेकिन दृष्टि उसके ऊपर नहीं गई, क्योंकि लोक के अंदर में तीसरी गाथा के अंदर में यह कहा कि एकत्वगत निश्चय सर्वत्र सुंदर लोक में। एकत्वगत निश्चय से यदि देखा जाए तो हर एक पदार्थ अपने स्वभाव को प्राप्त करता हुआ, एकत्व को प्राप्त करता हुआ सुंदर है। मतलब पदार्थ को स्वभाव से देखा जाए तो शुद्ध है, सुंदर है। मैंने जहाँ उसके साथ में दूसरे को मिलाने की चर्चा होती है वहीं पे विखवाद खड़ा होता है। बंधन की कथा जहाँ पे खड़ी होती है वहीं पे विखवाद खड़ा होता है। वस्तु स्वभाव से शुद्ध, वस्तु स्वभाव से परिपूर्ण, वस्तु स्वभाव से भगवत स्वरूप, वस्तु स्वभाव से परिपूर्ण है। इसकी दृष्टि होनी चाहिए। ये दृष्टि नहीं होने के कारण से जीव अनादिकाल से पर पदार्थ के अंदर में एकत्व करता हुआ, अपनापन करता हुआ, अहम करता हुआ, ममत्व करता हुआ दुखी होता है। तो सुखी होने का उपाय क्या है? तो वस्तु शुद्ध है, वस्तु अपने एकत्व को, स्वभाव को प्राप्त है, लेकिन किसको? जो उसकी दृष्टि करे उसको। वस्तु स्वभाव से शुद्ध, वस्तु स्वभाव से परिपूर्ण, वस्तु स्वभाव से प्रकट, वस्तु स्वभाव से विद्यमान, सिर्फ उसकी दृष्टि नहीं करता, बस उसी के अंदर में विखवाद की, बंधन की कथा खड़ी होती है। चौथी गाथा के अंदर में कहा कि सभी जीव को काम भोग बंधन की कथा का बात सुनी हुई है, उसका परिचय है, उसका अनुभव है। अब सही मायने में देखा जाए तो मैं कभी गंभीरता से जब सोचता हूँ तो ऐसा होता है कि जगत के काम और भोग के बंधन की जो कथा है वो बात तो जगत के अंदर में प्रचलित है, लेकिन जिनागम को पाकर, जिनवाणी को पाकर, कुनकुन आचार्य देव को पाकर, अमृतचंद्र आचार्य देव, पद्म प्रमल धारी देव को पाकर, गुरुदेव को पाकर, भव्य जीव जिन्होंने समय सार को हाथ में लिया है और हाथ में लेकर ये भाव यदि उसको उठता है कि हमें सम्यक दर्शन करना, तो ये भी परिणाम की कर्ता बुद्धि है। क्योंकि जिसको सम्यक दर्शन करना है उसको ये बात का पता होना चाहिए कि सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन का विषय शुद्धात्मा है, भगवान आत्मा है। जब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन के ऊपर में दृष्टि हो तो ये पर्यायी दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये विध्वंसनी, संसार में झुलाने वाली दृष्टि है। वस्तु की व्यवस्था को समझकर जहाँ ध्रुव स्वभाव के ऊपर दृष्टि गई, मैं परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि गई, वहां पे अनुभूति हो ही जाती है। ये मार्ग अत्यंत सरल है, सुगम है, सहज है, स्वाभाविक है। अब उसको दृष्टि कहाँ पे करना, उसकी उसको समझ होनी चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि काम भोग बंधन की कथा का उसको परिचय है, उसलिए उसको सुलभ लगता है। और भगवान आत्मा का, शुद्धात्मा का उसको बात उसने सुनी नहीं ऐसा कहते हैं। अनंत बार सुनी लेकिन सुनी नहीं, क्योंकि जहाँ सुनकर उसका परिचय नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, तो उसको सुनी नहीं ऐसा कहने में आता है। इसको अपन अच्छी भली भांति से सुनकर, समझकर, इसका परिचय करके अनुभव करे, तब जाके उसको सुना ऐसा कहने में आता है। पांचवी गाथा के अंदर में एकत्व विभक्त आत्मा को बतलाने की प्रतिज्ञा करते हैं आचार्य भगवान। अनंत गुणों से एकत्व
और पर्यायों से विभक्त। बस ये समय सार का हार्द है, समय सार का हृदय है। अनंत गुणों से एकत्व और पर्याय से विभक्त ऐसा आत्मा जो है उसको बतलाने की प्रतिज्ञा करते। उसने ऐसा उद्यम किया, ऐसा व्यवसाय किया, ऐसा निर्णय किया कि मैं अपने अनुभव से इस भगवान आत्मा को बताऊंगा और आप अपने इसको अनुभव से इनको प्रमाण करना। कुंदकुन आचार्य भगवान कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, उसलिए नहीं मानना, अपना स्वभाव ऐसा ऐसा जानकर, मानकर, श्रद्धान करके, उसका अनुभव करके, उसका विश्वास करके, आत्मा की अनुभूति करके इसको प्रमाण करने का आदेश देते हैं कुंदकुन आचार्य भगवान। तो देखिए, ये पराधीनता का मार्ग नहीं है, मार्ग है स्वाधीनता का। जहाँ स्वभाव की दृष्टि हुई और स्वभाव की दृष्टि हुई तो आत्मा की अनुभूति हुई, स्वसंवेदन हुआ, वेदन हुआ, और उसने उस अनुभूति से यदि प्रमाण किया तो उसने आचार्य भगवंत की बात सुनी, उसके आदेश को पाला, ऐसा कहने में आता है। यहाँ तक तो उपोद्घात है। 1 से 5 गाथाओं के अंदर में आत्मा कैसा है, पदार्थ कैसा है, वो एकाकार रहता हुआ ज्ञान, स्व पर को प्रकाशने का सामर्थ्य होने पर भी एकाकार रहता हुआ ज्ञान अनेकाकार हुआ ही नहीं है, इस बात की व्यवस्था को बतलाकर, समय सार को बतलाकर, एकत्वगत निश्चय सुंदर वस्तु है इस बात को बतलाकर, का भोग बंधन की कथा का परिचय है उसको बतलाकर, शुद्धात्मा की अनुभूति से उनको मैं आपको बताऊंगा और उससे उसको प्रमाण करना, ऐसा उपदेश देकर समय सार की शुरुआत करते हैं छठी गाथा में। छठी गाथा में समय सार की शुरुआत है और छठी गाथा में समय सार की पूर्णता है। पूज्य गुरुदेव श्री ये कहा करते थे कि समय सार की शुरुआत छठी गाथा से, समय सार की पूर्णता छठी गाथा से। तो मार्ग कितना सरल होगा, सिर्फ 2 पैराग्राफ के अंदर में प्रमत अप्रमत से रहित ऐसे एक ज्ञायक भाव को बतलाकर, एक शुद्धात्म तत्व को बतलाकर, एक भगवान आत्मा को बतलाकर आचार्य भगवान ने महान उपकार किया है। क्योंकि वस्तु ही ऐसी है, अनादि अनंत काल के अंदर में भगवान आत्मा की ओर कभी देखा नहीं। वो देखने का विधान बतलाते हैं आचार्य भगवान। क्या कहते हैं कि भगवान आत्मा स्वयं सिद्ध है। देखिए, शुरुआत करते हैं भगवान आत्मा स्वयं सिद्ध है। स्वयं से स्वयं सिद्ध की वस्तु की व्यवस्था को बतलाकर, अनादि अनंत वस्तु व्यवस्था को बतलाकर, नित्य उद्योतमान प्रकाशमान आत्मा को बतलाकर, उत्पाद से रहित, व्यय से रहित, एक रूप रहने वाला ज्ञायक भाव को बतलाकर अनंत अनंत उपकार किया आचार्य भगवान ने। अब ऐसी तो वस्तु है, ज्ञायक भाव स्वयं सिद्ध है, ज्ञायक भाव अनादि है, ज्ञायक भाव अनंत है, जिसका जन्म नहीं होता, जिसका व्यय नहीं होता, जिसका उत्पाद नहीं होता, जो सदा अनादि अनंत एक रूप रहता है, ऐसा परमात्मा तत्व, ऐसा परिपूर्ण तत्व को बतलाकर वस्तु की व्यवस्था की समझ करते हुए ये बात कहते हैं कि प्रभु आप देखो, वस्तु तो ऐसी है, लेकिन ऐसा तूने माना नहीं है। वस्तु तो है परिपूर्ण, वस्तु को परिपूर्ण करना नहीं, वस्तु तो स्वभाव से परिपूर्ण है। परिपूर्ण को परिपूर्ण जाने, वस्तु को परिपूर्ण माने और मैं परमात्मा हूं ऐसा माने तो उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। तो प्रथम पैराग्राफ के अंदर में श्रद्धा का विषय बतलाकर, दूसरे पैराग्राफ के अंदर में वस्तु की व्यवस्था को ज्ञान से बतलाकर ऐसा कहते हैं कि आप एक बार समझ लो वस्तु की व्यवस्था कैसी है, कि ज्ञान ज्ञेय को जानता ही नहीं है। ज्ञेयाकार अवस्था के अंदर में ज्ञायक पना प्रसिद्ध है। देखिए, पर्याय के अंदर में हुआ ज्ञेयाकार, जैसा ज्ञेय है उसका आकार ज्ञान के अंदर में प्रतिबिंबित हुआ, वो प्रतिबिंबित होते हुए वो ज्ञेय को प्रसिद्ध नहीं करता, वो ज्ञायक को जानकर जाननहार को प्रसिद्ध करता है। कितनी सुंदर वस्तु व्यवस्था, इस बात का विश्वास नहीं उसलिए जीव संसार में रुलता है। ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक पणु प्रसिद्ध है, ऐसा आचार्य भगवान ने मूल पाठ में कहा है। ज्ञेयाकार अवस्था, लेकिन प्रसिद्ध क्या है, जाननार पना प्रसिद्ध है। कब, जब ज्ञेयाकार की अवस्था हुई है तब ज्ञेय जानने में नहीं आता, तब ज्ञायक जानने में आता है, जाननहार जानने में आता है। देखिए कितनी अद्भुत बात है। उसलिए ये बात कहते हैं कि तेवी रीते ज्ञेयाकार थवाથી તે ભાવને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે, तो પણ જ્ઞેયकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेयों का ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, तो किसका ज्ञान होता है कि ज्ञेयाकार अवस्था में
गायक पणे जणायो। अब देखिए अवस्था ज्ञेयाकार और जानने में आया क्या गायक, माने यहाँ पे अनुमान की बात है, सविकल्प स्वसंवेदन की बात है, जहाँ पे वचनातीत सविकल्प स्वसंवेदन, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति है जिसके अंदर में ज्ञेयाकार अवस्था में जाननहार जानने में आता है, वही जाननहार स्वभाव प्रकाशन की अवस्था में जानने में आता है। जो ज्ञेयाकार अवस्था में जो जानने में आया, स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में वही ज्ञायक जानने में आता है। बात विश्वास की है, बात श्रद्धान की है, बात समझ की है, बात दृष्टि की है। आज तक उसने अपने स्वभाव की दृष्टि नहीं की, इसलिए उसको परेशानी हो रही है, वस्तु मुश्किल लग रही है, दुष्कर लगती है। वस्तु कभी दुष्कर होती ही नहीं है। वस्तु सरल है, वस्तु सहज है, वस्तु स्वाभाविक है, वस्तु प्रकट है, वस्तु नित्य उद्योतमान, नित्य त्रिकाल उद्योतमान है। सिर्फ आपको दृष्टि करना है, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसी दृष्टि होते ही आत्मा की अनुभूति हो जाती है। वस्तु बहुत सरल है, सुगम है, लेकिन अपने त्रिकाल स्वभाव जानने में आता है, उसको देखता नहीं। देखिए एक पंक्ति में पढ़ता हूँ, ये समयसार सिद्धि के 6वीं गाथा के प्रवचन में से 207 पृष्ठ पे गुरुदेव श्री कहते हैं, एक समयनी पर्याय जे छे ज्ञाननी उघड़ेली वर्तमान, एमा ए द्रव्य ज जणाय छे। एक समय की पर्याय जो ज्ञान की प्रकट हुई है वर्तमान, उसमें ज्ञायक ही जानने में आता है, लेकिन अज्ञानी की दृष्टि वहां पे नहीं है। तो दोष क्या है? जानने में हर एक समय प्रत्येक जीव को ज्ञायक ही जानने में आता है, लेकिन दृष्टि ज्ञायक के ऊपर नहीं है। मैं ज्ञायक हूँ ऐसा लक्ष्य नहीं करता ज्ञायक के ऊपर में, मेरे को ज्ञायक की अनुभूति करना है ऐसी समझ करता है, जिसको पर्याय दृष्टि कहते हैं। मैं ज्ञायक ही हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ, ऐसी यदि दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाए तो आत्मा की अनुभूति हुए बिना नहीं रहता। वस्तु स्वभाव से प्रकट है, वस्तु स्वभाव से विद्यमान है, वस्तु स्वभाव से हाजराजुर है। इसकी अनुभूति 3 काल में कठिन हो ही नहीं सकती। इसकी अनुभूति बहुत सरल है, सुगम है, सहज है, क्योंकि आपको दृष्टि करनी है। आपने स्वभाव की दृष्टि नहीं की, उसलिए कठिन लगता है। मुझे परमात्मा बनना है, उसलिए परमात्मा अपना कठिन है। मैं परमात्मा हूं, इस अभिप्राय के अंदर में परमात्मा बन जाता है। तो मार्ग बनने का नहीं है, मार्ग बनी बनाई वस्तु के स्वीकार का है, मार्ग बनी बनाई वस्तु के श्रद्धान का है। जानने में तो आता है भगवान आत्मा, लेकिन किसको? जो माने उसको, ना माने उसको। तो कहते हैं माने उसको। तो मानना क्या है? गुरुदेव श्री को जब ये कहा गया, प्रभु आपने हमको तो परमात्मा बना दिया, तो गुरुदेव ने ऐसा कहा, परमात्मा बनाया नहीं है, परमात्मा बता दिया। तो जिस पुरुष ने अपने को परमात्मा बता दिया, ऐसा अपना परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा, प्रकट वस्तु, विद्यमान वस्तु, हाजर वस्तु, वो मैं ही हूँ, ऐसा विश्वास होते ही, ऐसी दृष्टि होते ही आत्मा की अनुभूति हो जाती है। आत्मा की अनुभूति तीनों काल सरल रहती है। यदि तिर्यंच अवस्था के अंदर में जलचर प्राणी पंचम गुणस्थानवर्ती हो सकते हैं, जिसको कोई निमित्त नहीं, जिसको कोई उपदेश देने वाले नहीं, मात्र दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाती है और अनुभूति हो जाती है। तो अनुभूति तीनों काल में सरल होती है। जब होती है तब उसको आश्चर्य होता है कि आत्मा की अनुभूति इतनी सरल है तो अनादि काल में हुई नहीं क्यों मुझे। तो प्रभु हे भगवान, तो जिस मार्ग के अंदर में कुनकुन आचार्य देव जैसे समर्थ आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य देव जैसे समर्थ आचार्य, पद्म प्रमलधारी देव भावी तीर्थादिनाथ, इस महापुरुषों के हृदय को खोलने वाले गुरुदेव भी भावी तीर्थादिनाथ, उसको सुनकर मैं परमात्मा ही हूँ, परमात्मा ही हूँ, परमात्मा ही हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धान सभी के अंतरंग में हो, ऐसी मंगल भावना पूर्वक जय जिनेन्द्र। जी कोमल जी। हाँ, थैंक यू प्रकाश भाई। आप हमेशा की तरह एकदम सरलता से, एकदम सरल शब्द में आप बता देते हैं कि आत्मानुभूति खरेखर एकदम आसान है, एकदम सरल है, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इसी
प्रयास में रहेंगे कि हम भी प्रयोग इसी तरह करें कि मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूँ। The next speaker is Dr. Sanjeev Goda. Dr. Sanjeev Goda has come to Nairobi and he is familiar with all of us. So we are very welcome to have him today. आज उनका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उनका टॉपिक है कि कुंदकुन आचार्य जी वर्तमान के पुरुषार्थ से कुंदकुन आचार्य बने या पूर्व के संस्कार से वो कुंदकुन आचार्य बने, क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने शास्त्र दान किया था मुनिराज को। तो क्या वो संस्कार से वो कुंदकुन आचार्य वर्तमान में बने या ये वर्तमान के पुरुषार्थ से वो बने? तो आइए हमें बताते हैं डॉक्टर संजीव गोदा जी, प्लीज कम फॉरवर्ड। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। भगवान महावीर स्वामी और गौतम गणधर स्वामी के पश्चात यदि किसी को याद किया जाता है दिगंबर जैन परंपरा में, तो वो महान नाम है कुंदकुंदाचार्य देव का। कौन थे कुंदकुंदाचार्य देव और क्यों याद किया जाता है उन्हें? भगवान महावीर स्वामी के बाद तो 2 केवली और हुए, 3 केवली हुए ना, लेकिन 3 केवलियों में से 2 याद नहीं किया और सीधा इंद्रभूति को याद करके और 5 श्रुत केवलियों को याद नहीं किया और डायरेक्ट कुंदकुंदाचार्य के ऊपर आ गए। कुंदकुंदाचार्य के बाद भी पिछले 2000 वर्षों में अनगिनती महान दिगंबर संत हुए हैं, लेकिन फिर भी यदि भगवान महावीर स्वामी और गौतम गणधर स्वामी के समक्ष किसी को रखा जाता है तो वे कुंदकुंदाचार्य है। अभी प्रकाश भाई ने बताया दिगंबरत्व की पहचान है। जहां कुंदकुंदाचार्य का नाम जुड़ जाता है वहां से दिगंबर परंपरा की शुरुआत हो जाती है। आखिर कुंदकुंदाचार्य देव ने ऐसा क्या दिया? आखिर कुंदकुंदाचार्य का नाम प्रातः स्मरणीय क्यों है? प्रत्येक वक्ता, ग्रंथ करने वाला, ग्रंथ का वाचन करने वाला आज कुंदकुंदाचार्य देव को याद क्यों करता है? आज पिछले 2000 वर्षों में हुए दिगंबर संत, प्रत्येक संत अपने आप को कुंदकुंदाचार्य की परंपरा का होने में गौरव की अनुभूति करते हैं। तो आखिर क्यों? वर्तमान समय तक किसी भी दिगंबर महाराज से बात की जाए, हम कुंदकुंद आमनाए, कुंदकुंद आमनाए, कुंदकुंद आमनाए। आज तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की प्रशस्ति यदि देखते हैं तो कुंदकुंद आमनाए ये शब्द विशेष रूप से मिलता है। आपको मालूम है प्राचीन समय में जो प्रतिमाएं मिलती हैं उन प्रतिमाओं के ऊपर प्रशस्ति नहीं लिखी जाती थी। ये प्रशस्ति लिखने की परंपरा बाद में शुरू हुई जब अन्य परंपराओं के साथ में विवाद खड़ा हुआ। दिगंबरत्व श्वेतंबरत्व का विवाद जब खड़ा हुआ तो बोले प्रतिमाओं के ऊपर यदि दिगंबरत्व लिखा हुआ है, कुंद आमनाए यदि लिखा हुआ है, इट मीन्स वो प्रतिमा दिगंबर परंपरा की प्रतिमा है। मंदिर में जाते हैं 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं होती है। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के ऊपर आदिनाथ स्वामी का नाम है, महावीर भगवान की प्रतिमा पर महावीर स्वामी का नाम है, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा पर शांतिनाथ भगवान का नाम है, लेकिन 24 ही तीर्थंकरों की प्रतिमाओं पर कुंदकुंदाचार्य देव का नाम है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जिन मंदिरों में विराजमान हैं, 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, तो ऑन एन एवरेज देखें तो एक तीर्थंकर की प्रतिमा 24वें हिस्से में आएगी, लेकिन कुंदकुंदाचार्य तो 100% प्रतिमाओं के ऊपर दिखाई देंगे। आखिर ये गौरव कुंदकुंदाचार्य देव को क्यों प्राप्त है? आखिर कुंदकुंदाचार्य देव इतने महान क्यों हैं? उनकी इतनी महिमा क्यों है? उन्हें कुंद किसने बनाया ये तो बतलाइए। जैसा कि मेरे विषय के अंदर बात छिपी हुई है और अभी हमारे संचालन कर्त्री कोमल जी ने यह बतलाया कि पूर्व भाव में उन्होंने शास्त्र भेंट किया था। हम सब जानते हैं, कथा सुनाना उद्देश्य नहीं है। पूर्व भाव में जंगल में लगी हुई आग
और एक वृक्ष के कोटर में रखा हुआ एक शास्त्र जब एक ग्वाले को प्राप्त हुआ, उसने देखा क्या चमत्कार है, मैं तो अनपढ़ हूं, क्या किया जाए। बोले इस ग्रंथ को किसी पढ़ने वाले योग्य व्यक्ति को भेंट दे दिया जाए। ये दान की भावना से एक मुनिराज को वो ग्रंथ भेंट दे दिया गया। और ये कहा जाता है कि कालांतर में, भविष्य में, अगले भाव में कौंडकुंडपुर में एक नगर सेठ के यहाँ बालक ने जन्म लिया जिसका नाम पद्मनंदी रखा गया। वो पद्मनंदी नाम बचपन का पद्मनंदी था, कुंद कुंद के नाम से प्रसिद्ध हुए क्योंकि वे कौंडकुंडपुर के निवासी थे। अभी नैरोबी के छोटे छोटे से बच्चों ने कहा कौंडकुंडपुर ग्राम के निवासी होने के कारण, उस सिटी में जन्म लेने के कारण उन्हें कुंद कुंद कहा गया। अरे ये कैसे कुंद कुंद महान आचार्य हो गए? अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से ये महान है। कुंद कुंदाचार्य का व्यक्तित्व अभूतपूर्व है, कुंद कुंदाचार्य का कर्तृत्व आज हम सब नतमस्तक हैं मुमुक्षु लोग यदि किसी के नाम पर, तो वो समय सार जैसे ग्रंथ, वो प्रवचन जैसे ग्रंथ, ये कुंद कुंदाचार्य का वर्तमान में दिया गया अवदान 2000 वर्षों की परंपरा में हम कितने भाग्यशाली हैं जो ये कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथ आज हमारे को उपलब्ध हैं, उनकी गाथाएं उपलब्ध हैं। हम आज कुंद कुंदाचार्य देव का आचार्य पदवी दिवस मना रहे हैं, लेकिन कुंद कुंदाचार्य देव से तो पूछो कि आप आचार्य हैं कि नहीं है। हम उन्हें आचार्य देख रहे हैं, हम उन्हें मुनि देख रहे हैं, लेकिन कुंद कुंदाचार्य देव वे महान आचार्य हैं जो हमें मुनि नहीं, श्रावक नहीं, श्रावकोत्तम नहीं, हमें परमात्मा देखते हैं। हमें परमात्मा छोड़ भगवान देखते हैं। गुरुदेव श्री ने हमारे को कुंद कुंदाचार्य देव का परिचय कराया है, महिमा आती है गुरुदेव की। गुरुदेव नहीं होते तो कुंद कुंदाचार्य देव का परिचय कौन कराता, और कुंद कुंदाचार्य देव नहीं होते तो सीमंदर स्वामी का परिचय कौन कराता, भगवान महावीर स्वामी की वाणी का परिचय कौन कराता। आज वर्तमान में जितना शिथिलाचार बचा हुआ दिखाई देता है, जब कभी मैं देखता हूं तो कहीं ना कहीं उसमें असर दिखाई देता है कुंद कुंदाचार्य देव के अष्टपाहुड़ ग्रंथ का। यदि अष्टपाहुड़ जैसी सशक्त लेखनी नहीं होती कुंद कुंदाचार्य देव के माध्यम से, प्रवचन सार की चरणानुयोग सूचक चूलिका यदि नहीं होती, तो वर्तमान में जो शिथिलाचार दिखाई देता है वो शिथिलाचार अपनी चरम सीमा पर होता। आप कल्पना तो कीजिए किस दृढ़ता से उन्होंने 2000 वर्ष पहले शिथिलाचार के ऊपर कुठाराघात किया, मंद बुद्धि लोगों के ऊपर, अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वालों के ऊपर, श्रावकों में, शिष्यगण में नेह रखने वालों के ऊपर, स्नेह रखने वालों के ऊपर, यत्वा तद्वा आचरण करने वालों के ऊपर किस तरह से उन्होंने चोट मारी है। यही तो वो व्यक्तित्व है जो व्यक्तित्व उन्हें कुंद कुंद आचार्य बनाता है, जो उन्हें महान बनाता है। उनकी महानता का आधार विदेश क्षेत्र गमन नहीं है। कुंद कुंदाचार्य देव क्यों महान हुए? विदेश क्षेत्र गए थे साहब, विदेश क्षेत्र गए थे विदेश क्षेत्र, हमें कोई ऐतराज नहीं है। देवसेनाचार्य देव ने चर्चा की है उनके विदेश क्षेत्र गमन के संदर्भ में। दर्शन पाहुड़ के अंदर चर्चा की गई, जय पौम नंदिना हो सीमंदर स्वामी दिव्य नाणेन न विवो हई तो समणा कहम सुमग्गम पयाणंती। लेकिन कुंद कुंदाचार्य देव के 1000 वर्ष बाद हमें कोई ऐतराज नहीं है। कुंद कुंदाचार्य देव ने कहीं उल्लेख नहीं किया कि मैं विदेश क्षेत्र गया, इसलिए उल्लेख नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि यदि मेरे विदेश क्षेत्र का उल्लेख किया गया तो कहीं दुनिया ये नहीं समझ लेवे कि ये तो विदेश क्षेत्र जाकर के आए थे इसलिए महान है। संजीव गोदा की महिमा गाते हुए कोई ये नहीं कहे कि अंतरराष्ट्रीय है इसलिए महान है। भैया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुंद कुंदाचार्य देव विदेश क्षेत्र गए थे, ये उनकी महानता का आधार नहीं है। उनकी महानता का आधार है आत्मानुभूति से कर प्रमाण। उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश नहीं की। अपने पंच परमागमों के अंदर एक लाइन उनको लिखना बर्दाश्त नहीं था जहां वे इस बात को कहते कि मैं विदेश क्षेत्र गमन करके आया हूं। क्यों लिखे? क्या महिमा है विदेश क्षेत्र की? वैदेही तत्व इस देह देवालय में विराजमान है, महिमा उसकी गाएं कि विदेश क्षेत्र की महिमा गाएं? ये देह देवालय में विराजमान तत्व है कि नहीं? वैदेही तत्व जो देह से भिन्न है, वहां जाकर के भी क्या किया उन्होंने? उन्हें क्या नया मिल गया? मैं आपसे पूछता हूं विदेश क्षेत्र जाने के बाद भी। 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत थे। प्राप्त किंवदंतियों से, कथाओं से प्राप्त होता है कि वे कुंद कुंदाचार्य देव की महिमा, कुंद कुंदाचार्य देव की चर्चा विदेश क्षेत्र में चला करती थी। ऐसा सुनते हैं। वहां के एक चक्रवर्ती ने प्रश्न किया सीमंदर भगवान से कि जैसे हमारे यहाँ दिव्य ध्वनि वर्त रही है और दिगंबर संतों का सद्भाव दिखाई दे रहा है,
भरत क्षेत्र में तो अभी पंचम काल है, क्या वहां भी कोई ऐसे संत हैं? और उल्लेख आया कुंदकुंदाचार्य देव का। सोचो जरा, कुंदकुंदाचार्य देव की गौरव गरिमा, गौरव गाथा विदेश क्षेत्र में प्रवर्तमान थी। 2 भावलिंगी संत चारण रिद्धिधारी मुनिराज वहां से गमन करते हुए आ गए यहाँ, और कुंदकुंदाचार्य देव को तप के प्रभाव से चारण रिद्धि प्रकट थी, उन्हें अपने साथ में लेकर के चले गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वहां विदेश क्षेत्र जाकर के कुंदकुंदाचार्य देव को क्या मिला? आत्मा मिल गया। वहां जाकर के आत्मानुभूति हुई, वहां पहुंच करके सीमंदर भगवान से ज्ञायक भगवान आत्मा के बारे में कोई नई बात जानने को मिल गई होगी। रंच मात्र नहीं, रंच मात्र नहीं। 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती संत, भावलिंगी संत, अंतरोन्मुखी वृत्ति वाले, शुद्धोपयोग शुभोपयोग के झूले में झूलने वाले, क्षण क्षण में अंतर्मुखों सिद्धों से बातें करने वाले, अतीन्द्रिय आनंद रस में निमग्न रहने वाले वे भावलिंगी संत, उन्हें क्या नया मिलने वाला था? लेकिन विदेश क्षेत्र जाकर के सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का गौरव तो प्राप्त हुआ उन्हें अपनी महिमा विदेश क्षेत्र जाने के आधार पर नहीं बतलानी थी। ये प्रतिपादन नहीं करना था उनको कि मैं विदेश क्षेत्र जाकर के आया हूं। आत्मानुभूति से कर प्रमाण। शायद यह भी एक शंका हो सकती है कि यहाँ के लोग कदाचित यह कह देते कि ये कुंदकुंदाचार्य की बातें तो विदेशी माल है। यहाँ भी आज विदेशी का बहुत निषेध करते रहते हैं ना, विदेशी विदेशी वहां, विदेशी हटाओ, विदेशी माल नहीं, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, ऐसी चर्चाएं चलती रहती है। ये बात अलग है कि हमारे विदेश से भी सब लोग सुन रहे हैं, अभी लंदन से सुन रहे हैं, नैरोबी से सुन रहे हैं, सिंगापुर से सुन रहे हैं, अशोक जी भाई साहब हैं, सब जगह से सुन रहे हैं। लेकिन भाई है तो सब मूल में भारतीय। यहाँ विदेशी का निषेध किया जाता है। भारतवर्ष में देखो आप, जो भी समाज सुधारक लोग होंगे सब ये कहेंगे स्वदेशी अपनाओ, विदेशी नहीं। कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारे समयसार जैसे मूल ग्रंथ को, मूल आगम को ये लोग विदेशी माल कह करके उसका निषेध कर देवे। पाया था उनने समयसार, अपनाया उनने समयसार, दे गए हमें वे समयसार, गा रहे आज हम समयसार। है समयसार बस एक सार है, समयसार बिन सब असार। कैसी पंक्तियां लिखी है दादा ने। आत्मानुभूति से कर प्रमाण पाया उनने आनंद महान। आत्मानुभूति से कर प्रमाण, जो अनुभव की बातें, जो त्रिकालीन ज्ञायक भगवान आत्मा के संदर्भ में चर्चा चिंतन उनके उपयोग में चलता था, अनुभूति से प्रमाण किया उन्होंने। सुनी सुनाई बातें नहीं है ये, बातें विदेह की नहीं है, ये बातें अनुभव की है, जो अनुभव से सिद्ध होती है। कुंदकुंदाचार्य देव ने उस अनुभव में डूब करके ये बातें लिखी है। आगम चला आ रहा था, अध्यात्म का निरूपण किया उन्होंने, इसलिए वे महान हैं। वर्तमान युग को क्या दे गए कुंदकुंदाचार्य देव? सब भूल गए। कुंदकुंदाचार्य देव की रचनाओं के बाद में कुंदकुंदाचार्य देव के पूर्ववर्ती आचार्यों को भी भूल गए। जिन चंद्राचार्य से दीक्षा ली उन्होंने, उनको भूल गए। उनके परवर्ती कुंदकुंदाचार्य देव ने अपना साम्राज्य, साम्राज्य माने अपना आचार्य पद किसे सौंपा? याद है आपको? मनीष जी शायद कोई उल्लेख बतला पाए। उन्होंने अपना आचार्य पदवी किसे दी जब वे समाधिस्थ हुए? उनके उत्तराधिकारी कौन हुए? पता नहीं। एक लंबी परंपरा दिखाई देती है हमें। कुंदकुंदाचार्य देव के बाद में सीधे अमृत चंद्राचार्य याद आते हैं। क्यों? 1000 वर्ष में वीतरागी दिगंबर संत नहीं हुए? अमृत चंद्राचार्य की महिमा भी इसलिए आती है क्योंकि कुंदकुंदाचार्य देव के ग्रंथों के ऊपर कलम चलाई। कुछ तो बात है कुंदकुंदाचार्य देव के ग्रंथों में, कुछ तो बात है। वे कुंदकुंदाचार्य देव जिन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, आज हम उनके गीत गा रहे हैं। अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, और मैं पलट करके कहूं तो ये कह सकता हूं उन्होंने अपने अलावा कुछ नहीं लिखा। जो लिखा सिर्फ अपने ही लिए लिखा, जो लिखा सिर्फ अपना ही परिचय दिया। अपने बारे में कुछ नहीं लिखा कुंदकुंदाचार्य देव ने, सच में कुछ नहीं लिखा। अपने माता पिता के बारे में, अपने गांव के बारे में, नगर के बारे में, विदेश क्षेत्र गमन के बारे में, सीमंदर भगवान के बारे में, दिव्य ध्वनि का लाभ लेकर के आए, चारण रिद्धि प्राप्त थी, कुछ नहीं लिखा। अरे ये स्वयं का स्वरूप था भी तो नहीं, पड़ोसी का परिचय क्या लिखते? क्या उन्होंने लिखा? तो यह लिखा, अहमिको खरु शुद्धो निम्ममो नाण दंसण समग्गो तम मिठिदो तश्चित्तो सव्वे ए देखयम नेमी। ये आत्मा परमात्मा है, ये लिखा उन्होंने। हमें महिमा क्यों नहीं आए भाई साहब?
उन्होंने मुझसे मेरा परिचय करा दिया, उन्होंने मेरे गीत गाए, उन्होंने मेरी महिमा गाई। मुझे क्यों नहीं महिमा है कुंद कुंदाचार्य देव की? हम क्यों नहीं कुंद कुंदाचार्य देव के गीत गाएं? ये उन्हें महान बनाती है कि उन्होंने अपनी महानता की चर्चा नहीं की, उन्होंने मेरी महानता की चर्चा की, उन्होंने इनकी महानता की चर्चा की। अंकुर जी आप महान हैं, मनीष जी आप महान हैं, विकास जी आप महान हैं, अजित भाई आप महान हैं। आपकी महानता के गीत गाए उन्होंने कुंद कुंद शब्द के गीत नहीं गाए, उन्होंने आत्मा के गीत गाए। ये उनको महान बनाती है, ये उन्हें आचार्य बनाती है। ये कुंद कुंद का कुंद कुंदत्व है, ये उनका गौरव है कुंद कुंदाचार्य देव का। क्या है कुंद कुंदाचार्य देव? शब्दों से समझ में नहीं आता है, शब्दों से पकड़ में नहीं आता है। कुंद कुंदाचार्य देव किस हस्ती का नाम है? कुंद कुंदाचार्य देव क्या है? साक्षात देवी प्रकट हो गई जब दिगंबरत्व श्वेतांबरत्व का विवाद प्रकट हुआ कुंद कुंदाचार्य देव के सामने, दिगंबरत्व की प्राचीनता को सिद्ध करने के लिए। अनेक रिद्धियों से संपन्न देव लोग कुंद कुंदाचार्य के चरणों में आकर के भक्ति स्तुति किया करते थे। वे हैं कुंद कुंदाचार्य देव। लेकिन उन्हें अपने आचार्य पद की महिमा नहीं आती है, उन्हें अपने बाह्य आचरण की महिमा नहीं आती है। शिथिलाचार उन्हें बर्दाश्त नहीं था। सोचता हूं तो सोचते रह जाते हैं, न होएंगे न हुए हैं न होएंगे मुनिंद्र कुंद कुंद से। आखिर ये पंक्तियां कैसे निकली है? कुंद कुंदाचार्य देव यदि नहीं होते, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं ये भरत क्षेत्र में क्या होता। भरत क्षेत्र के अभागे जीवों को यदि तीर्थंकरत्व का विरह यदि किसी ने बुलाया है तो वे कुंद कुंदाचार्य देव है। नहीं होते कुंद कुंदाचार्य देव। कल्पना करके देखो एक बार। दादा कहते हैं एक बात कि जिनकी महिमा को जानना हो, एक बार उन्हें हटा करके देखिए आप, तो आपको पता लगेगा उनकी असली महिमा क्या है। पता लगेगा हमारे को। कुंद कुंदाचार्य को एक तरफ साइड में करके देखिए। यदि नहीं होते, आज यदि समय सार ग्रंथ नहीं होता, बोलो मुमुक्षु समाज में क्या होता? आज यदि समय सार ग्रंथ नहीं होता तो गुरुदेव श्री होते क्या? और गुरुदेव श्री नहीं होते तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं बाबू जुगल जी की, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं दादा की, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं ज्ञानचंद जी विदिशा वालों की, उत्तम चंद जी साहब की, किसी विद्वान की कल्पना नहीं कर सकते यदि गुरुदेव नहीं होते तो। और गुरुदेव हुए उसमें कितना बड़ा योगदान है टोडरमल जी साहब का और कुंद कुंदाचार्य देव का। माने कुंद कुंदाचार्य देव का समय सार प्राप्त हो गया गुरुदेव को। गुरुदेव को गुरुदेव किसने बनाया, मुझे ये बतलाइए। गुरुदेव को गुरुदेव किसने बनाया? हम तो बात कर रहे हैं कुंद कुंदाचार्य देव की। अरे कुंद कुंदाचार्य देव के समय सार को पाकर पिछले 2000 वर्षों में अनगिनती जीवों ने मोक्ष मार्ग में कदम रख लिया है। अनगिनती जीवों ने जीवन बदल गया है। ये वो समय सार है। आगम परंपरा चला करती थी, आगम की व्याख्याएं हुआ करती थी, आगम अध्येता लोग हुआ करते थे। अभी बतलाएंगे, मनीष जी का विषय है कुछ आगे चल करके, उनके सामने क्या चुनौतियां थी इसकी चर्चा करेंगे हमारे बीच में। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं क्या लिख दिया उन्होंने, समय सार लिखा। उन्होंने एक एक अधिकार में सिर्फ वे बातें लिखी जो अनुभव से प्रमाणित होकर के होती है। और 5वीं गाथा में जैसा अभी प्रकाश भाई ने बतलाया, अनुभूति से करो प्रमाण भैया, निर्णय करो तुम। मैं अपने अनुभव से बात बतलाता हूं, तुम अपने अनुभव से जुड़ करके देखो जरा, अपने अनुभव में डूब करके देखो जरा, तुम्हें वही बातें नजर आएगी। मैं कहता हूं उसे मत मानो। मैंने ये बातें सीमंदर भगवान से सुन करके नहीं मानी है, मैंने आत्मानुभूति से प्रमाण करके मानी है। इसलिए वे कहते हैं तुम भी यदि स्वीकार करो तो उधार का माल लेकर के नहीं, अपनी तर्क से, अपनी युक्ति से, अपने न्याय से और अनुभव में डुबकी लगा करके इन बातों को स्वीकार करो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या है वस्तु स्वरूप, अनुभूति क्या होती है, आत्मा क्या होता है, ये समझ में आएगी बात आपको। भैया बहुत बड़ा उपकार है कुंद कुंदाचार्य देव का। जितने गीत गाए जाएं, जितना उपकार कुंद कुंदाचार्य देव का माना जाए वो कम है। कुंद कुंदाचार्य देव का आचार्य पदवी दिवस मना लेना मात्र ये सार्थकता नहीं है। उन्होंने जो दिया है उसे ग्रहण किया या नहीं किया वो तो दे गए हमें समय सार, लेकिन हमने समय सार पाया कि नहीं पाया, हमने समय सार अपनाया कि नहीं अपनाया, हमने समय सार को समय सार रूप अनुभव किया या नहीं किया। वे तो दे गए, उनका तो काम हो गया। कितना कठिन काम था ये कल्पना करो आप उस जमाने की। जब कभी सुनते हैं ना अपन ग्रंथ किस तरह से लिखे जाते थे, कैसे कांटों से लिखे जाते थे एक एक अक्षर, ये तो है ही
शुभोपयोग की भट्टी में जलकर एक एक शब्द की रचना हुई है। शुभोपयोग की भट्टी में जलकर हम कैसे चुका पाएंगे कुंद कुंदाचार्य देव के ऋण को? हम कैसे उपकार मानेंगे उनका? समय सार मय हो जाओ, समय सार मय हो जाइए। और सौभाग्य से ये वर्ष प्रारंभ हो रहा है कुछ समय में अपने बीच में, जब गुरुदेव श्री को समय सार ग्रंथ प्राप्त हुआ था, 100वां वर्ष, और हम मनाने जा रहे हैं पूरे वर्ष भर समय सार मय हो जाएंगे। सब कोई, हर कोई समय सार मय हो जाएगा। हम सब समय सार मय हो जाएं, समय सार के गीत गाएं, समय सार के अंतर में उतर जाएं, समय सार की गहराइयों में डूब जाएं। जिस गहराई में बैठ करके कुंद कुंदाचार्य देव ने बातें की थी, उस गहराई में बैठ करके हम भी उस अनुभव को प्राप्त करें, तब सच में कुंद कुंदाचार्य देव के गौरव को जान पाएंगे। ये कुंद कुंदाचार्य देव क्या थे, ये शब्दों का विषय नहीं है। जो अनुभवी होते हैं वे अनुभव करते हैं समय सार मय होकर, तब उन्हें महिमा आती है कुंद कुंदाचार्य देव क्या थे। हम क्या महिमा बतलाएंगे? सच में हम शब्दों से महिमा नहीं बतला सकते। सच में हमारे पास में शब्द है ही नहीं। कोई मिथ्या दृष्टि जीव कुंद कुंदाचार्य देव की महिमा को बता ही नहीं सकता है। एक ज्ञानी के हृदय में ज्ञानी की महिमा आती है। सम्यक दृष्टि होकर के ही कुंद कुंदाचार्य देव की सच्ची महिमा को जाना जा सकता है। हम सब भेद विज्ञानी बने, हम सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, हम सब आत्मानुभव पूर्वक कुंद कुंदाचार्य देव का स्मरण करें, तभी कुंद कुंदाचार्य देव का ये दिवस मनाना सार्थक होगा। हम सब इस अवस्था को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कुंद कुंदाचार्य के महात्म्य को और उनके इस भव्य पुरुषार्थ को बताकर उनकी महानता तभी समझी जा सकती है जब हम स्वयं आत्मानुभूति का सम्यक दर्शन प्राप्त करें। तभी हम आचार्य कुंद कुंद के हृदय को, उनकी बात को, उनके मर्म को और उनकी महिमा को हम समझ सकते हैं। ऐसी सुंदर चर्चा की। और अब इस गोष्ठी में थोड़ा सा कहना चाहिए कि रस परिवर्तन हम कर रहे हैं, और मैं यहाँ बुला रहा हूँ एक छोटी सी लघु भक्ति के लिए प्रसिद्ध विद्वान और बहुत ही हम सभी अनुजों पर अत्यंत प्रेम रखने वाले और बड़ी भीगी हुई प्रवृत्ति के ऐसे आदरणीय सुनील जी भाई साहब राजकोट, वे हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके माध्यम से एक हम लघु भक्ति का यहाँ पर रसास्वादन करेंगे, और उसके बाद हमारे जो अंतिम वक्ता है डॉक्टर मनीष जी, अब से कुछ मिनटों के बाद ही हम उनका वक्तव्य का यहाँ पर लाभ लेंगे। उससे पहले मैं संजय जी भाई साहब को एक 20 सेकंड की सूचना देने के लिए, हमारे संजय जी जो सर्वोदय अहिंसा के सभी इस तरह ये पूरा का पूरी जो अनेक प्रकार की कार्य, जितनी भी तत्व प्रचार की हम इस समय धाराएं देख रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा योगदान संजय जी भाई साहब का है। वे एक छोटी सूचना यहाँ पर हमारे बीच में दे रहे हैं। संजय। जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव श्री को आज से 100 वर्ष पूर्व समय सार की प्राप्ति हुई थी, इसलिए हम कहान समय सार संप्राप्ति वर्ष ये 2021-22 में मनाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी से 1 दिसंबर से समय सार परिचर्चा प्रारंभ हुई है, जो डॉक्टर राकेश जी शास्त्री के संयोजकत्व में प्रारंभ हुई है, जिसमें देश के अनेक विद्वान उसमें शाम को 6 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन उपस्थित होते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस परिचर्चा में अवश्य सम्मिलित हों। दूसरा, मुझे सूचनाएं देनी थी कि जो आपके सामने ये स्क्रीन पर ये पोस्टर दिखाई दे रहा है, ये हमने इसमें बनाया है, इसको हमने पोस्टर के रूप में भी प्रकाशित किया है। तो हम सभी लोगों को ये पोस्टर भेज रहे हैं, कुछ भेजे जा चुके हैं और आगे हम भेजते जा रहे हैं। अगर किसी को नहीं मिल पाए तो उनसे अनुरोध है कि हमें वो सूचित करें, तो हम उनको पोस्टर जरूर भेजेंगे। आपसे अनुरोध ये है कि इस पोस्टर को आप अपने जो मंदिर है उनमें लगाएं, स्वाध्याय भवनों में लगाएं, या आप अपने घर में भी कहीं स्वाध्याय भवन कुछ कक्षा आपका हो उसमें, तो वहां भी ये पोस्टर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बस इतनी ही सूचना देनी थी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद संजय जी। निश्चित तौर पर समय सार परिचर्चा के माध्यम से इस समय सार संप्राप्ति वर्ष को हम बहुत ही उल्लास के साथ और आचार्य कुंद कुंद देव को समझते हुए यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आगे सुनील जी भाई साहब राजकोट, वे आए और एक लघु भक्ति यहाँ पर हमारे बीच में प्रस्तुत करें। सभी साधर्मी भाइयों को सादर जय जिनेंद्र। आज हम आप लोग आचार्य पदवी आरोहण का महामहोत्सव संपन्न करने जा रहे हैं।
आचार्य कुंद कुंद देव का गुणगान और उनका स्तवन करने जा रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद देव की शैशव दशा से लेकर के माता पिता और उसके बाद अपनी मेधावी बुद्धि से उन्होंने हम आप लोगों को विदेह क्षेत्र गमन के पश्चात पंच परमागमों की जो प्रसादी दी है, उन सारे प्रसंगों को याद करते हुए आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक होते हैं और अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं एक छोटी सी भक्ति के साथ। कुंद कुंद आचार्य प्रभु जी तुमको नमन हमारा, हाँ तुमको नमन हमारा। कुंद कुंद आचार्य प्रभु जी तुमको नमन हमारा, हाँ तुमको नमन हमारा। गाथाएं रच रत्न मणि सम दी सौभाग्य हमारा। कुंद कुंद आचार्य प्रभु जी तुमको नमन हमारा, है तुमको नमन हमारा। गुण कीर्ति थे तात मात शांतला देवी ग्रह धन्य हुआ। दक्षिण दिश में कौंड कुंदपुर नगर आपका जन्म हुआ। पद्म प्रभु रख नाम आपका, छाया हर्ष अपारा। कुंद कुंद आचार्य प्रभु जी तुमको नमन हमारा, गुरु तुमको नमन हमारा। तीक्ष्ण बुद्धि के धारी थे अरु बचपन से मेधावी थे। बाल जनों के साथ खेलते अंतर से वैरागी थे। 11 वर्ष की अल्प आयु में, 11 वर्ष की अल्प आयु में वैराग्य को है धारा। कुंद कुंद आचार्य प्रभु जी तुमको नमन हमारा, हाँ तुमको नमन हमारा। पद्म नंदी मुनिराज शिखर पर निज स्वभाव में रहते थे। अंतर में आनंद हिलोरे सहज ही परिशह जयते थे। मुक्तियान पर झूल रहे हैं मानो निकट किनारा। कुंद कुंद आचार्य प्रभु जी तुमको नमन हमारा, हाँ तुमको नमन हमारा। पौष कृष्ण अष्टमी दिवस था, पद आचार्य को ग्रहण किया। भव्य जनों के हित की खातिर मार्ग मुक्ति को प्रकट किया। परमागम के पुण्य प्रणेता, परमागम के पुण्य प्रणेता अति आभार तुम्हारा। कुंद कुंद आचार्य प्रभु जी तुमको नमन हमारा, हाँ तुमको नमन हमारा। गाथाएं रच रत्न मणि सम, गाथाएं रच रत्न मणि सम
दी सौभाग्य हमारा, कुंद कुंद आचार्य प्रभु जी, तुमको नमन हमारा, गुरु तुमको नमन हमारा, तुमको नमन हमारा, है सौभाग्य हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब सुनील जी राजकोट, जिनकी भक्ति का रसास्वादन किया। हम इस कार्यक्रम के आखिर में भी, मतलब हमारे तीसरे वक्ता पंडित मनीष जी शास्त्री के वक्तव्य के बाद भी एक और भक्ति का रसास्वादन भी करेंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं सीधे मेरठ, जहां से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनीष जी शास्त्री। मनीष जी भाई साहब का परिचय पूर्व में ही मैं कार्यक्रम की शुरुआत में ही दे चुका हूं, और मैं इनके विषय में एक बात हमेशा कहता हूं कि पूरी भावुकता अथवा प्रचलित धारणाओं की अपेक्षा तथ्य परक और प्रमाण परक बात करने के लिए विशेष रूप से पहचाने जाने वाले भाई साहब मनीष साक्ष्यों के आधार से और बहुत ही मार्मिक चर्चा और बहुत ही स्वयं भी चर्चा करते हुए काफी भीग जाते हैं, तो यही वजह है कि अन्यों को भी भिगा पाते हैं। ऐसे मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका विषय है आगम परंपरा के बीच अध्यात्म को स्थापित करने की चुनौती। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद से पहले का जो 500 वर्षों का लगभग इतिहास था भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के उपरांत, वो तो आगम परिपाटी से ही रचा पचा था, उसी से भरा हुआ था। और ऐसे बीच में आचार्य कुंद कुंद ने किस तरह से अध्यात्म को, दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को हमारे बीच में दिखाया, इस तरह से भाई साहब मनीष जी उन चुनौतियों पर, उस समय के संदर्भों पर हमारे बीच में यहाँ पर बात रखेंगे। भाई साहब मनीष जी। जास के मुखार बिंद तै प्रकाश भास वृंद, स्यादवाद जैन वैन इंद कुंद कुंद से, तास के अभ्यास तै विकास भेद ज्ञान होत, मूढ़ सोलख नहीं कुबुद्धि कुंद कुंद से, देत हैं असीस शीस नाय इंद चंद जाहि, मोह मार खंड मार तंड कुंद कुंद से, विशुद्धि बुद्धि वृद्धि दा प्रसिद्ध रिद्धि सिद्धि दा, हुए है ना होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से। धन्यवाद भाई डॉक्टर संजीव गोधा जी को, जिन्होंने इस परिचर्चा के लिए एक बहुत अच्छा माहौल दिया। आचार्य कुंद कुंद को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा और इस समय के पहिए को पीछे घुमाना पड़ेगा, और हमें जाना पड़ेगा आज से लगभग 2000 साल पहले। उस दौर में जब कुंद कुंद देव हुए और उन्होंने लेखनी उठाई, कलम उठाई। कुंद कुंद देव ने जब कलम उठाई और प्रयोजनभूत तत्व, 7 तत्व, उसमें भी केंद्रीय तत्व भगवान आत्मा, जब इन बिंदुओं को उन्होंने लिखा, समयसार लिखा, सारे अध्यात्म ग्रंथ लिखे, तो उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं। अभी शिथिलाचार पर प्रहार की बात की। कुंद कुंद आचार्य ने 2 प्रकार के शिथिलाचार पर चोट की। एक तो वो शिथिलाचार जिसकी अभी चर्चा संजीव जी ने की, यानी जो क्रिया का शिथिलाचार था, उस पर उन्होंने प्रहार किया, उस पर चोट की। और दूसरा शिथिलाचार था तात्विक शिथिलाचार। अब आप कहेंगे ये तात्विक शिथिलाचार तो हमने पहली बार सुना ये शब्द। तात्विक शिथिलाचार से आशा ये है कि मान लीजिए आपकी क्रिया अच्छी है, आप देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं, आपका ज्ञान शास्त्रानुसार है, आपका आचरण अच्छा है, इसके बावजूद भी यदि आपके अंदर भेद विज्ञान की तड़फ नहीं है, आप ज्ञान और क्रिया को ही मोक्ष मार्ग मान के बैठे हैं, और आपको 7 तत्वों की और भेद विज्ञान की और शुद्धात्मानुभूति की ना तड़फ है और ना उसका बहुमान है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं तात्विक शिथिलाचार, आध्यात्मिक शिथिलाचार।
और कुंद देव ने उस दौर में इन दोनों शिथिलाचारों पर चोट की, एक क्रिया के शिथिलाचार पर और एक आध्यात्मिक शिथिलाचार पर। जब वो लिखते हैं, जीव विमुख को सबो दंसण विमुख को भी चल सबो, कि सम्यक दर्शन से रहित जीव चलता फिरता मुर्दा है। तो ये आध्यात्मिक व तात्विक शिथिलाचार पर चोट करने की पराकाष्ठा है। यानी अपने साधु संघ को, साधुओं को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं, यदि तुम सम्यक दर्शन से रहित हो, आत्मदृष्टि से रहित हो, तो चलते फिरते मुर्दा हो। अब इससे बड़ी चोट क्या हो सकती है अध्यात्म के क्षेत्र में, ये सोचने लायक बात है। कुंद देव इसलिए महान हुए कि उस दौर में ये दोनों प्रतिपादन जरूरी थे। शिथिलाचार घुस रहा था क्रिया का, और तात्विक जड़ता भी बहुत मजबूती के साथ व्याप्त थी। तब आचार्य ने लेखनी उठाई, और खास तौर से मेरा विषय अध्यात्म को लेकर है। तो जब वो अध्यात्म लिख रहे थे, खास तौर से समय सार लिख रहे थे, क्योंकि अध्यात्म में शिरोमणि ग्रंथ उनका समय सार है। यद्यपि समय सार से भी ज्यादा आध्यात्मिक सूक्ष्म नियम सार है, लेकिन नियम सार के लिए उन्होंने लिखा, ये मैं अपने स्वयं की भावना के लिए लिख रहा हूँ। और अनादि मिथ्या दृष्टि पर्याय मूढ़ जीव को मुख्यतः संबोधित करने के लिए उन्होंने समय सार लिखा। और जब वो समय सार लिखते हैं तो उनके सामने 4 बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां थी, सुमेरु पर्वत से भी ज्यादा बड़ी बड़ी और मजबूत। उनके सामने पहली चुनौती ये थी कि वह समय सार में जिस अध्यात्म को लेकर चलने वाले थे, जैसे उन्होंने गुणस्थान आदि 29 प्रकार के भावों को पुद्गल की पर्याय कहा, पुण्य और पाप दोनों को सोने और लोहे की बेड़ी कहते हुए दोनों को एक देखा, जीव को कर्म और नौ कर्म का कर्ता बताया, सम्यक दृष्टि को आश्रयों से भिन्न बताया, सम्यक दृष्टि के भोगों से निर्जरा बताई, कोई जीव किसी कर के सुख दुख का कर्ता नहीं है ऐसा बताया, प्रतिक्रमण आदि विष कुंभ है ऐसा बताया, और बंध की कथा को उन्होंने विषम वादनी बताया। ये जो बहुत जबरदस्त बिंदु थे समय सार के, जो कि समय सार को अति विशिष्ट बताते हैं, ये लिखने के सामने उनके पहले सबसे बड़ा चैलेंज ये था, चुनौती, कि हमारे यहाँ व्यक्ति प्रामाणिक नहीं होता, सर्वज्ञता की प्रामाणिकता चलती है। और हमारे यहाँ कोई भी बात होगी तो इसका प्रमाण क्या है, तो हमें उसे परंपरा से सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन कुंद देव को जो कुछ भी कहना था, उनके सामने कोई लिखित आगम प्रमाण नहीं थे, कोई लिखित आगम प्रमाण नहीं थे। एक चुनौती। और इसी से जुड़ी हुई दूसरी चुनौती उनके सामने ये थी कि जो भी लिखित की बात कर रहा हूं, श्रुति परंपरा से तो सब था, लेकिन लिखित की बात नहीं थी। और दूसरा, जो लिखित आगम था उस समय, वह समस्त आगम उनसे विरुद्ध विवक्षा का था। विरुद्ध नहीं कह रहा हूं मैं, विरुद्ध विवक्षा का था। क्यों? आचार्य निर्बंध आत्म तत्व को स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उनके समक्ष जो उपलब्ध आगम था, चाहे वो षटखंडागम हो, चाहे कसाय पाहुड़ हो, चाहे उल्लेखों से समझ में आता है कि और भी इस तरह का आगम रहा होगा, वो सभी आगम जीव का बंध की तरफ से कथन करने वाला था। तो पहली चुनौती तो ये थी कि उनके सामने कोई रेफरेंस नहीं थे। कोई खड़ा होके कहेगा, आचार्य देव आप कह रहे हैं गुणस्थान पुद्गल की पर्याय है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कौन सी गाथा में, कौन से शास्त्र में, कौन से पृष्ठ पर? कोई जवाब नहीं। दूसरा, चलो लिखा नहीं है तो बात ठीक है, लेकिन जो लिखा है वो तो बिल्कुल उल्टा लिखा है। आप कह रहे प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है ज्ञायक भाव, और अभी तो हम षटखंडागम में पढ़ के आए हैं 14 गुणस्थान में पहले 6 गुणस्थान प्रमत्त हैं, बाद के 8 गुणस्थान अप्रमत्त हैं, और ये प्रमत्त अप्रमत्त जीव की अवस्थाएं हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। समझ में आ रही है बात? तीसरी चुनौती कुंद देव के समक्ष ये थी कि जीवों की छल ग्रहण करने की प्रवृत्ति। कुंद देव जानते थे कि पंचम काल के जीवों का संघनन बहुत कमजोर होता है, शारीरिक शक्ति बहुत कमजोर होती है, लेकिन इनकी कषाय शक्ति बहुत मजबूत होती है। और छल ग्रहण करने में तो ये पंचम काल का हर एक जीव PhD है, डीलिट है। इसे हम जो बात जिस उद्देश्य से कहेंगे वो ग्रहण नहीं करेगा, बाकी सब ग्रहण करेगा। और जब वो 5वीं गाथा में लिखते हैं, चुक्केज छलम रणघितब्बम, यदि मैं स्वानुभूत इस आत्मा को दिखाने में कहीं
चूक जाए तो आप छल ग्रहण मत करना। तो आचार्य कुंद देव ने ये बात बाकी आगमों में नहीं लिखी, केवल समय सार में चूकने की बात की। हम आचार्य से प्रश्न करते हैं, हाँ हे आचार्य देव, आप चूकने की बात करते क्यों हैं? जब आप जैसे समर्थशाली आचार्य जब चूकने की बात करेंगे तो हमें समझ में आती है कि कुंद देव इसके जरिए कितने बड़े चैलेंज को झेल रहे थे, कितने बड़ी चुनौती का सामना कर रहे थे। उन्हें डर था कि समय सार पढ़ के कोई एकांती ना हो जाए, कोई भ्रष्ट ना हो जाए, कोई शिथिलाचारी ना हो जाए, कोई निश्चयाभासी ना हो जाए। जब हम कहेंगे प्रतिक्रमण विषकुंभ है, अप्रतिक्रमण दशा आनंददायी है, धर्म है, तो कोई ऐसा सुनकर पापाचार में ना लग जाए, पुण्य पाप दोनों को एकत्व को सुनकर कोई पाप में ना चला जाए, जीव कर्म नो कर्म का करता है ऐसा सुनकर कोई एकांत से ऐसा मानकर वेदांती ना हो जाए। ये आशंका कुंद देव को थी। अन्यथा कुंद जैसे समर्थ आचार्य जब चूकने की बात करते हैं तो ये बात कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं होती। क्यों नहीं होती? मैं उनकी इस बयान में, मैं उनकी इस टिप्पणी में उनके चेहरे की आशंकाओं को और उनके मार पड़ने वाली बलों को देख रहा हूं। ये चुनौती थी। चौथी चुनौती उनके समक्ष थी जीव की अनादिकालीन पर्याय मूल। कुंद देव जानते थे मैं तुम्हें समझा भी दूंगा, है ना, बहुत अच्छी तरह तुम्हें समझ में भी आएगा, लेकिन मैं तुम्हें समय सार समझाऊंगा, मैं यहाँ समय सार जोर लगाऊंगा, आत्मा का जोर लगाऊंगा, और तुम्हारे अंदर छुपी हुई पर्याय मूर्ता, अनादिकालीन पर्याय मूर्ता के संस्कार वो जोर लगाएंगे। और वो अनादिकालीन पर्याय मूर्ता के संस्कार तुम्हें निर्बंध आत्म तत्व स्वीकार नहीं करने देंगे। तुम कहीं किंतु के नाम पे अटक जाओगे, कहीं परंतु के नाम पे अटक जाओगे, और साधना के उच्च शिखर पर पहुंचकर वहां से चूक जाओगे, है ना। तुम फलोगे हाँ शुद्ध नय से आत्मा शुद्ध है, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ। कुंद देव आहा कमाल कमाल कर दिया आपने, है ना। और तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगला, व्यवहार ना भेदवा, सीमती फुलव, सब हम सोचते जाएंगे, विचार भी करेंगे, स्वीकार करेंगे, और मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, अहम एक को खलु शुद्ध हो, और बिल्कुल निश्चय से ये बात सही है। लेकिन अंत समय में जाके किंतु वो पर्याय मूलता का सर्प उस स्थिति में भी आपको डस लेगा और आपको वही रसातल में ले जाएगा जहां आप पहले थे, अतृप्त, खाली, रिक्त, दुखी। समझ में आती है बात की नहीं? मेरा एक ये ज्ञानोदय पत्रिका निकलती है ना एक दीवानगंज से, उसमें एक लेख निकला था जिसका नाम था किंतु वायरस। कोरोना वायरस तो अभी है, कुछ समय नहीं रहेगा, जैसा भी रहेगा, है ना, इस जन्म में भी से ही उसका सरोकार है। लेकिन ये किंतु नाम का वायरस इतना खतरनाक है, अनादिकाल से लेकर आज तक देवशास्त्र गुरु मिले, तीर्थंकर जैसे जीव भी मिले, कुंद देव जैसे भी मिले, गुरुदेव भी जैसे मिले, लेकिन अंत में किंतु के सांप ने डस लिया और आचार्य कुंद ने जितनी भी ताकत लगाई उस सारी ताकत को हमने पोटली में बांध के समुद्र में फेंक दिया। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ये 4 बहुत बड़ी चुनौतियां थी। कैसे उन्होंने समाधान किया, ये भी बड़ा रोचक बिंदु है। इस विषय पे मेरे 6 व्याख्यान यूट्यूब पे हैं, आपको जिज्ञासा हो तो पढ़ना। वो 6 व्याख्यानों की विषय वस्तु में आपको 6 मिनट 10-15 मिनट बता रहा हूँ। आचार्य के सामने जो पहली चुनौती थी कि उनके सामने कोई संदर्भ नहीं थे, रेफरेंस नहीं थे। अब इसके लिए आचार्य क्या करें? उस समय शास्त्रों को लिपिबद्ध करना शुरू ही हुआ था, मिलते कैसे? तो इसका तरीका आचार्य ने ये निकाला कि मैं जो कह रहा हूं वह भगवान ने कहा है। किसने कहा है? भगवान ने कहा है। और उन्होंने लिखा ऐसो जड़ोपदेशो, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। सब्बण्णाण दिठो, ऐसा सर्वज्ञ के ज्ञान में देखा गया। केवली जड़े ही बढ़िया, ऐसा केवली जिनेंद्र के द्वारा बताया गया है। बेनती सब्बण्णु, ऐसा सर्वज्ञों ने बताया है। वर्णी दो जड़ बरे हिम, ऐसा जिनवरेंद्रों ने वर्णन किया है। ऐसा समय सार में 40 स्थानों पर आचार्य ने भगवान की साक्षी दी है। जैसे आचार्य की टीका में ज्यादा गाथाएं हैं, उस दृष्टि से अमृत चंदाचार्य की टीका की दृष्टि से 37 जगह। आप सोचो 40 जगह जब कुंद देव भगवान की साक्षी देते हैं
तो फिर बात गंभीर हो जाती है। और जब वो ऐसी साक्षी देते हैं तो मुझे उनके अंदर की आशंका और मैं उनके चेहरे की रेखाओं को पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि कुंद कुंद देव के मन में ये बात है। हर आदमी ये प्रश्न पूछेगा, ये बात कहाँ लिखी, कहाँ लिखी? मैं क्या बताऊंगा? अरे भगवान ने कही है भैया। तो आचार्य आप 40-40 जगह क्यों लिख रहे हैं कि भगवान ने कही है? 1-2 जगह लिख देते, समझ में आया ना? अब बेटा तुम समझ जाओ, मैं सीधे ही कह दूंगा कि सीमंदर भगवान से सुनी है मैंने, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, ध्यान रखना, कुंद कुंद देव कहेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि मैं सीमंदर स्वामी को बीच में लाऊंगा तो इसके कितने बड़े बड़े साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। समझ में आया ना? अब उस पर व्याख्यान सुनना, मेरे उसमें पता चलेगा। दूसरी चुनौती उनके सामने ये थी, जब वो तीसरी गाथा में लिखते हैं, एयत थड़े 6 गदो समो सबथ सुंदरो लोए बंद कथा एयत्ते बंद कहा एयत्ते तेण विसंवादनी होदी, कि एकत्व के साथ बंधन की कथा विसंवाद पैदा करती है। चौथी गाथा में फिर वो बंध कहा शब्द, बंध कथा का जिक्र करते हैं। सुध परिचिदान भूदा सब बस्त विकाम भोग बंध कहा एयत्तस्सो लंबोड़वरिण सुलहो बेहत्तस्, कि जीव ने काम भोग बंध की कथा सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, इसलिए वो सुलभ है। जब बंध की कथा का अर्थ देखने के लिए मैं आचार्य जयसेन के चरणों में गया तो उन्होंने बंध कथा का अर्थ किया प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुवाग बंध, नर नारक आदि पर्याय, यानी उस समय का उपलब्ध जो आगम था, षटखंडागम, जिसमें गुणस्थान आदि की चर्चा, उस सारी चर्चा को उन्होंने बंध कथा कहा है। कुंद देव ने, कितनी ताकत चाहिए इस बात को कहने के लिए। कोई भी प्रश्न करता, आप कह रहे हैं जीव प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, गुणस्थान पुद्गल की पर्याय है। अभी आप प्रवचन सुनने के और समय सार पढ़ने के पहले मैं षटखंडागम पढ़ रहा था। मैं स्वयं अपने कानों से पुष्पदंत आचार्य के मुखार मंत्र से सुनकर आया हूं कि ये पुद्गल की पर्याय नहीं, जीव की पर्याय है। आचार्य क्या कह रहे हैं आप? तो कुंद कुंद देव के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे वो पूर्वाचार्यों का सम्मान करें, कायम रखें और अपना निर्बंध आत्म तत्व भी स्थापित कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने एक बड़ी अद्भुत शैली का इस पंचम काल में विकास किया, और यदि वो शैली उन्होंने डेवलप नहीं की होती तो सच में कुंद देव को तक तो हम एकांती वेदांती घोषित कर चुके होते। और वो शैली थी निश्चय व्यवहार की शैली। उनकी शैली निश्चय व्यवहार की शैली, कि पूर्वाचार्यों ने जो गुणस्थान आदि बंध का कथन किया है वह व्यवहार है, मैं जो बता रहा हूं वो निश्चय है। वो बंध की तरफ से कथन है, ये निर्बंध की तरफ से कथन है। वो संयोग का कथन है, ये स्वभाव का कथन है। वो तात्कालिक सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य है। सत्य दोनों ही हैं, लेकिन वो क्षणिक सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। हम दोनों में कोई विरोध नहीं है। यदि भूतबदली पुष्पदंत आचार्य समय सार लिखते तो ऐसा ही लिखते, और मैं यदि षटखंडागम लिखता तो वैसा ही लिखता। क्यों? क्योंकि दोनों में दृष्टि का भेद है, अपेक्षा का भेद है, कहीं मन मुटाव या मतभेद जैसी बात नहीं है। वो कह रहे हैं वो भी सर्वज्ञ कथित है, और मैं कह रहा हूं ये भी सर्वज्ञ कथित है। बस फर्क क्या है? वो व्यवहार है, ये परमार्थ है। वो ज्ञेय तत्व है, ये उपादेय तत्व है। समझ में आया ना? इस तरह से उन्होंने इस चुनौती का सामना किया। तीसरी चुनौती थी छल ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तो आचार्य ने खुद ये प्रयत्न किया है कि कहीं जीव छल ग्रहण ना करे। जब वह समस्त व्यवहार का निषेध करते हैं तो व्यवहार की उपयोगिता भी बताते हैं कि जैसे मिलेक्ष को मिलेक्ष की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, ऐसी व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता। यानी व्यवहार को प्रतिपादक के तौर पर स्थापित किया। 12वीं गाथा में कहा कि जो जीव अपरम भाव में स्थित है उसे व्यवहार के द्वारा उपदेश होना चाहिए। तो व्यवहार को साधक दशा के लिए भी स्थापित किया और प्रतिपादक के तौर पर भी स्थापित किया। और गाथा 58-59 में तो जब बहुत कमाल हो गया, जब कुंद कुंद देव कहते हैं जीवस्स एस वर्णो जड़े ही व्यवहार दो उत्ता, कि यह वर्ण जीव का है, ऐसा जनेन्द्र भगवान ने व्यवहार से कहा है। यानी व्यवहार को भी उन्होंने सर्वज्ञ कथित कहा है। इससे अधिक व्यवहार की उपयोगिता और क्या हो सकती है? और मैं ये कहना चाहता हूं, कोई आरोप करता है कि समय सार में निश्चय एकांत का कथन है
और व्यवहार का निषेध किया गया है। हाँ, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि व्यवहार का निषेध किया गया है, इसलिए क्योंकि जब हम अंतरोन्मुख पुरुषार्थ करते हैं तो निषेध किया नहीं जाता, व्यवहार निषेध करने लायक ही है। लेकिन यदि कुंद कुंद देव ने व्यवहार को सबसे ज्यादा सम्मान भी दिया है तो इसी समय सार में दिया है, उसे प्रतिपादक के तौर पे, उसे साधना के स्तर पर स्थापित करके। इसलिए स्वयं उन्होंने कोशिश की है कि कहीं शिथिलाचार, कहीं एकांत का कथन ना आए, और मैं कह सकता हूं कि वह अपने इस प्रयास में बहुत सफल रहे। और चौथी चुनौती थी कि जीव की अनादिकालीन पर्याय मूढ़ता। अब इसके लिए क्या किया जाए? तो कुंद कुंद ने एक ही दृष्टि रखी कि पर्याय मूढ़ता को, बहिरात्मपन को पुष्ट करने वाली जितनी जितनी युक्तियां हैं, पर्याय मूढ़ता और बहिरात्मपन, मैं आत्मा नहीं हूं शरीर हूं, इस बात को पुष्ट करने वाली जितनी जितनी युक्तियां हैं उन सबका उन्होंने निषेध किया। क्यों? जब हम आत्मा की तरफ बढ़ते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी बाधाएं, कोई क्रिया में अटक जाता है, कोई शुष्क ज्ञान में अटक जाता है, कोई पुण्य में अटक जाता है, कोई प्रतिक्रमण आदि में अटक जाता है, कोई आगम से स्वयं को गुण स्थान आदि से जानकर अटक जाता है। जितने जितने अटकने के अवसर थे उन सारे अवसरों को, उन सारी युक्तियों को आचार्य ने उपस्थित किया और उन सबको पोटली में बांध के समुद्र में फेंक दिया। समझ में आए ना? बस ये ही कर सकते थे और उनके पास उपाय क्या था? इस तरह सच में क्रिया के शिथिलाचार पर तो चोट की ही आचार्य कुंद कुंद देव ने, और तात्विक शिथिलाचार पर जो चोट की ये भी अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। और मैं कह सकता हूं कि जो परिस्थितियां कुंद कुंद देव के सामने थी, चुनौतियां थी, लगभग वही चुनौतियां आज कुंद कुंद देव के लगभग 1900 साल बाद आध्यात्मिक सतपुरुष श्री गुरुदेव कांजी स्वामी के समक्ष थी। उनके सामने भी वही चुनौतियां थी, इनके सामने भी वही चुनौतियां थी। बस फर्क ये था कि गुरुदेव के सामने रेफरेंस थे, 2000 साल की आगम परंपरा लिखित रूप से मौजूद थी, कुंद कुंद देव के सामने लिखित रूप से मौजूद नहीं थी। लेकिन एक बात और थी कि कुंद कुंद देव के सामने काले झंडे दिखाने वाले नहीं थे, लेकिन गुरुदेव ऋषि के सामने काले झंडे दिखाने वालों की बहुत लंबी फौज थी। लेकिन ना कुंद कुंद देव हटे ना गुरुदेव हटे, चुनौतियों से ना कुंद कुंद देव भागे ना गुरुदेव भागे। यही कारण था कि आज हम आनंदित हैं, आज हम जीवित हैं। और सच कह रहा हूं, ये कोई अतिशय, ये कोई स्तुति परक शब्द नहीं बोल रहा हूं मैं, कि यदि हमारी आगम परंपरा से 2000 साल पहले कुंद कुंद देव को माइनस कर दो तो सच में हम खत्म हो जाएंगे। फिर धर्म के नाम पे वो ही रहता, 4 गति 148 प्रकृतियां 8 कर्म गुण स्थान, बस गिनती करते रहो। समझ में आए ना? बस हो गया धर्म। सच में यदि जिन धर्म अपने तत्व ज्ञान से जीवित है तो वह तत्व ज्ञान उस युग में यदि किसी ने लिपिबद्ध किया, जिया और अपने शिष्य परंपरा से आगे बढ़ाया तो वो कुंद कुंद देव थे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सच में कुंद कुंद देव के विषय में जो भी मैं कहूंगा, उसमें जो भी कहूंगा अतिशय नहीं है, वो थोड़ा ही है, बहुत थोड़ा है ना? समझ में आया ना? जितना कहा जाए कम है। और जैसे कुंद कुंद देव के वचन ऐसे हैं, जिस घर में कुंद कुंद देव के वचन हो वहां दुख रह नहीं सकता, वहां निराशा रह नहीं सकती, वहां विषाद रह नहीं सकता, वहां डिप्रेशन रह नहीं सकता। सच है, इतनी ताकत है कुंद कुंद देव के वचन में। और मैं अधिक क्या कहूं, एक व्यक्ति यदि खुदकुशी करने जा रहा है, जीवन खत्म करने जा रहा है, और उसको समय सार कुंद कुंद देव के वचन हाथ में लग जाएं, तो सच में उसे महसूस होगा कि अरे जीवन तो ये है, और जिसे मैं खत्म करने जा रहा हूं वो कोई जीवन है? ये जीवन है असली तो। एक विधवा बहन जो विधवा होने के कारण बहुत तड़फ रही हो, उसे लग रहा हो कि मैं बर्बाद हो गई, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, उसे यदि ये कुंद कुंद देव के वचन ये समय सार हाथ लग जाए तो उसकी अनुभूति ये बोल पड़ेगी कि सब कुछ हो गया, जो भी हुआ हुआ, लेकिन अब मैं विधवा नहीं रही। एक अनाथ, एक यतीम
जिसके पिता मर गए हो, माँ मर गए हो, छत खत्म हो गई हो सर से, ऐसा लगे अब सब कुछ खत्म, ऐसे यतीम, ऐसे अनाथ व्यक्ति को यदि कुंद कुंद देव के वचन हाथ लग जाए तो सच में उसकी अनुभूति बोल पड़ेगी कि जो भी हो, अब मैं अनाथ नहीं रहा। समझ में आया ना? ऐसे आनंददायी ये वचन है। कुंद कुंद देव सच में खतरों के खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक पूर्वपड़ाओं से इतने खतरे मोल लिए हैं। यदि कोई कमजोर मनोबल का व्यक्ति होता तो इन चुनौतियों से भाग जाता, लेकिन वो भागे नहीं, वो अड़े रहे और बढ़ते रहे। यही कारण है कि आज हम आनंदित हैं, आज हम सबका अस्तित्व है। कुंद कुंद देव नहीं होते तो ये शरीर तो होता, ये घर परिवार दुकान मकान है ना, आप हम सब होते, लेकिन हम सबको जोड़ने वाली एक जो आध्यात्मिक सूत्र है ना, हूँ भगवान आत्मा छू एम नक्की कर, ये नहीं होता। ये देन यदि है तो कुंद कुंद देव की है। बस अब समय मेरे समझ से हो गया होगा, इसलिए कुंद कुंद देव के चरणों में श्रद्धांजलि विनयांजलि अनंत अनंत वंदना करते हुए मैं विराम लेता हूँ। यदि किसी का कोई प्रश्न हो इस विषय में तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष जी। डॉक्टर मनीष जी को मैंने देवलाली में भी सुना है, उसने बहुत ही अच्छी तरीके से वो आचार्य परंपरा का पूरा समझाया था, तो आज भी उनका लाभ मिला। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वी हैव वन लास्ट भक्ति बाय सुनील जी ऑफ राजकोट, एंड बिफोर वी conclude the program, I would like to thank Vineet Bhai and Sanjay ji of Sarvodaya Ahimsa, who have always helped us to arrange these programs that have been able for everyone to see. We have a hand raised by Meena Shah. Do you have a question, Meena? You can unmute yourself. I have a question for Manish ji. ये जो कुंद कुंद आचार्य पदवी दिवस का दिन जो है, वो जो MB पाटिल की जो बुक है उसमें लिखा है, मगर is there any other reference anywhere else? नहीं, आपका जो प्रश्न है वो मेरा भी प्रश्न है। दरअसल क्या है कि देख लूं, दरअसल क्या है, जो भी ऐतिहासिक उल्लेख हैं, शिलालेख हैं या हमारी पट्टावलियां हैं, वहाँ कुंद कुंद देव के जन्म की अथवा पदवी ग्रहण करने की कोई तारीख मुझे पढ़ने नहीं मिली। और ये मेरे लिए भी अभी पिछले कुछ दिनों से नया कॉन्सेप्ट ही है कि आचार्य कुंद कुंद देव के पदवी की तिथि दी गई है, लेकिन वो उस MB पाटिल वाली पुस्तक में है। आपने मुझे बताया, मुझे भी यहाँ वहाँ से वही पता चला था, लेकिन कोई ऐसे पुख्ता प्रमाण से मतलब शिलालेख अथवा कोई ऐतिहासिक रेफरेंस अथवा कुंद कुंद देव के अपने ग्रंथों में कोई उल्लेख आया हो या उनके विषय में कोई बहुत प्राचीन उल्लेख हो, ऐसे उल्लेख अभी नहीं है। प्राचीन उल्लेख से तो अभी कुंद कुंद देव का पूरा समय ही अभी फिक्स नहीं है ना। जब उनके पूरे जीवन का समय ही अभी फिक्स नहीं हो पाया है तो उनकी तिथियां को फिक्स करने में बड़ा खतरा है। फिर भी वो उपन्यास और कथा के तौर पे यदि लिखा है तो 365 दिन में से किसी ना किसी दिन तो होगा ही, है ना। तो यदि वो एक आधार मिलता है और उसके आधार पे यदि हम कुंद कुंद देव को उनके दीक्षा को याद कर लेते हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई पुख्ता प्रमाण मुझे नहीं मिले। थैंक यू। Okay, thanks Meena for your question. We are very grateful for everybody who has joined from London, from Kenya, from Singapore, from India, and any other place that I have missed. Before we have the last bhakti, गुरुदेव श्री को ये समय सार संवत 1978 में मिला था और संवत 1975 में श्रीमद राजचंद्र जी ने ये ढूंढारी भाषा में से हिंदी भाषा में ट्रांसलेट पंडितों से करवाया था। तो गुरुदेव का, श्रीमद जी का, कुंद कुंद आचार्य का और सारे पंडितों का नाम, जिनका नाम मैंने लिया भी नहीं है, उन सभी का बहुत बहुत आभार है कि आज हम लोग सब समय सार का इतना महान कर रहे हैं। 100 साल हम लोग
मना रहे हैं कि गुरुदेव श्री को के हाथ में समयसार जी शास्त्र आया और कुनकुन आचार्य की आज पदवी दिन है, तो वो तो हम याद करेंगे ही कि आज इस साल 100 साल हो रहे हैं गुरुदेव के हाथ में समयसार जी शास्त्र आया। और अब for the last event of this for this program, we will have one bhakti again by Sunil Ji Shastri, and then we will all take leave. यदि चाहते हो मिल जाए कुंद कुंद का कुंदन, यदि चाहते हो मिल जाए कुंद कुंद का कुंदन, तो सब मिल कर करो हृदय से कुंद कुंद को वंदन, तो सब मिल कर करो हृदय से कुंद कुंद को वंदन। परमागम की रचना कर सब जग का उपकार किया है, वीर प्रभु का शुभ संदेशा घर घर भेज दिया है। ऐसे उपकारी श्री गुरु का हो शत शत अभिनंदन, हम सब मिल कर करें हृदय से कुंद कुंद को वंदन, कुंद कुंद को वंदन। समय सार में बतलाया है केवल निज शुद्धात्म, समय सार का सार ग्रहण कर बने भव्य परमात्म, इसीलिए हम करें आज से समय सार का अध्ययन, हम सब मिल कर करें हृदय से कुंद कुंद को वंदन, कुंद कुंद को वंदन। दिव्य ध्वनि के सार रूप में प्रवचन सार बनाया, इसमें ज्ञान गेय रूपों में सारा विश्व बताया। प्रवचन सार ग्रंथ के गायक बन जाते लघुनंदन, हम सब मिल कर करें हृदय से कुंद कुंद को वंदन, कुंद कुंद को वंदन। नव पदार्थ षट द्रव्य और पंचास्तिकाय का वर्णन किया ग्रंथ पंचास्तिकाय में सुंदरतम दिग्दर्शन, इसके अध्ययन से मिलता है कुंद कुंद का कुंदन, हम सब मिल कर करें हृदय से
कुंद कुंद को वंदन, कुंद कुंद को वंदन। नियम सार की रचना करके बात कही निज मन की, स्वांत है सुखाय होने से ही यह वस्तु बनी जन जन की। इसका अध्ययन करने से ही मिलता शुद्ध निरंजन। हम सब मिलकर करें हृदय से कुंद कुंद को वंदन, कुंद कुंद को वंदन। जब जब मुनिचर्या में भाई शिथिलाचार है आया, तब तब ग्रंथ अष्टपाहुड़ ही सबके मन को भाया। इसके पढ़ने से होता है शिथिलाचार विसर्जन। हम सब मिलकर करें हृदय से कुंद कुंद को वंदन, कुंद कुंद को वंदन। भव्य जीव इन परमागम का निश दिन अध्ययन करते, श्रवण मनन चिंतन अवधारण कर भव सागर तरते। यदि चाहते हो तुम रे भी कट जावे भव बंधन, तो सब मिल कर करे हृदय से कुंद कुंद को वंदन। यदि चाहते हो मिल जाए कुंद कुंद का कुंदन, तो सब मिल कर करो हृदय से कुंद कुंद को वंदन। तो सब मिल कर करो हृदय से कुंद कुंद को वंदन, कुंद। Thank you, Vineet, and thank you for reminding us that on every Sunday or sometimes on Monday, we have an online web series, a very interesting one called Jain Heroes. We have been playing it since the last 3 months, and every Monday we have a unique topic. Every Monday or Sunday, we play a topic based on a different Jain hero of our history. Tomorrow's topic is on Dhyanat Rai Ji Pandit Ji, and if you wish to join us, Vineet Bhai will just send you a link, and it will be very nice if you can hear tomorrow's lecture. And if you wish to listen to the recorded lectures since the last 3 months, we have it on Bhajans by Sarvodaya Ahimsa YouTube channel under the folder of Jain Heroes. Please have a look, and I'm sure you will find something that you like. Thank you for tuning in tonight, and we wish you the very best in your Atma Anubhuti, and let us all experience our self-soul as soon as possible. Thank you.